Well, to all of you, I welcome Vijay Agrawal ji, our learned speaker for today's webinar, and I so acknowledge the presence of our convener and office bearer, Sunil Damija ji and Rajiv Kohli ji. As you know, today we have the webinar how to use Excel, 10 tips and very shortcut tips. Our Vijay Agrawal ji will tell you. And Vijay Agrawal ji also developed a one software or small software by putting some information you may get NCST you are going to allot and PAN number on this basis. Vijay Agrawal ji by profession is a chartered accountant and has been awarded most valuable person by the Microsoft for continuously 4 years. This award is given for a one person in a year in the world, and the Microsoft is also invited him to solve the problem on Excel. This is the beauty of sir that he has chosen the different field other than chartered accountancy. So this is the small profile or small introduction of him. I request him because there are a lot of things about him. I request sir take charge and say a few words about you before starting, sir. Thank you, sir. Over to Vijay ji. Thank you, Rajesh ji. Thank you very much. First of all, I am very thankful to Sri Rajesh ji and all the participants for such a good response. So more than 350 people already participants already joined. So really, it's a privilege for me to be part of this very great group. And I remember I also visited your Krolbag one session on Excel. So really, I always wanted to interact most of you. And today's time which I am having, so I believe it's only 1 hour. And after that, maybe 15-20 minutes or maybe half an hour, we are going to have some question answer. So I was saying Excel, I'm very passionate about Excel, and because of the logics, because of the beauty, I love Excel, and I thought I should be go in that particular way. So I have worked more than 20 years in various positions with MNCs, Indian companies also. But for last 4 years, I have started my own consulting, and my main consulting area is this big data automation, through Excel, and also providing solutions, making some softwares with the help of Excel, and also providing the corporate trainings or such type of trainings I do for ICI also regularly. So last Sunday, around 9 days back, I was having a webinar for NIRC also. So that was also attended by more than 500 people. So now I have decided that every day or maybe alternate days, I'm going to have such type of webinars. Again, thank you very much. And to take care of that time, let's start with the Excel and the one utility Rajesh ji have shared with you. So that is the file of how to find the GST number from the PAN number without portal, without any website, without internet. That is just an Excel file, very small Excel file. Just you have to give your PAN number, you have to just give your state code, and immediately you are going to have your GSTN number. And even if you are going to have GSTN number, so it can tell you whether that GSTN number is correct or not. Sometimes what happens, there is some mistake while writing the GSTN number, some number interchange. So that will also. जी, तो अभी मैं ये कह रहा था कि एक आपको यूटिलिटी जो है वो मैंने आपको जो है दी है. राजेश जी इज गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. सो दैट यूटिलिटी इज वंडरफुल टू फाइंड द जीएसटीएन नंबर. सो आप जो है उससे जैसे मर्जी आपको मैं जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको जो है वो जीएसटीएन की जो मैंने यूटिलिटी भेजी है जल्दी से मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. Are you able to see my screen now?
Yes, yes, sir. Okay, very good. ये यूटिलिटी है सर, विच आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू. अब इसके अंदर क्या हो, कैसे आप देख पाएंगे सर. इसके अंदर ये देखिए, आपको यू हैव टू प्रोवाइड योर पैन नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पैन स्टेटस ये आपको दे देगा. अगर आपका ये पैन नंबर ठीक होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये बता देगा कि पैन नंबर आपने ठीक नहीं दिया है. देन यू हैव टू गिव योर स्टेट कोड. इसमें से आपको स्टेट कोड देना है अपना, जो भी स्टेट कोड आपको सिलेक्ट करना है. और उसके बाद आपको ये बताना है कि जनरली तो फर्स्ट जो भी आपका होगा, कई स्टेट्स में कई बार क्या होता है, हम 2 बार जीएसटी नंबर ले लेते हैं, सेम पैन कोड के लिए और सेम स्टेट कोड के लिए. तो इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट है कि सेकंड. बाय डिफॉल्ट इट इज फर्स्ट ओनली. तो जस्ट आपने केवल ये 2 इंफॉर्मेशन देनी है, पैन नंबर और स्टेट कोड को सिलेक्ट करना है. इमीडिएटली यू आर गोइंग टू फाइंड योर जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर, whether you have applied or not. Even you are going to apply after 1 month, after 1 year, after 5 years, whatever GSTN number it is going to tell, the same GSTN number you people are going to get. So anybody can test it, and if there is some mistake, so please let me know. So I'll fix it. But till now, like I have said it to hundreds of the chartered accountants, and no one has told me even a single mistake. ये आपको मैंने यूटिलिटी दे दी है सर, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए. ठीक है सर. इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का, बाय द वे एक नंबर अगर आप मेरे को बताएं तो मैं आपको बता सकता हूं. लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार. कोई भी अगर आप में से जो है, जो हमारे पैनलिस्ट हैं या कोई भी अगर अपना देना चाहे, तो दे कैन टेल मी व्हाट इज द जीएसटीएन नंबर और अपना स्टेट और चेक कर सकते हैं. कोई दे रहा है तो मैं ही दे देता हूँ सर आपको. हाँ जी. हेलो. हाँ जी बताइए सर. AA BPA मैं आपको सर चैट कर देता हूँ. अच्छा, आप मेरे को टेक्स्ट कर रहे हो क्या? आप किस पे, व्हाट्सएप पे कर रहे हो या मीटिंग पे कर रहे हो? मीटिंग पे कर दिया मैंने सर. अच्छा, मीटिंग पे कर रहे हो आप. ओके. तो ये मीटिंग पे आपने कहाँ पे मेरे को, मीटिंग में आ गए ना. AA BPA मैं बोल देता हूँ सर. हाँ. AA. चैट में जाके सर. B for Bombay, P for Punjab, A for Agra. जी. BPA 9376. 9376. N for Nagpur. And state sir? State Delhi. ओके सर. तो ये देखिए जी, ये आपका पैन नंबर आ गया जी. ठीक है सर. जी. ठीक है ना सर? बिल्कुल ठीक है सर. सर इसमें हम कंपनी का भी ले सकते हैं? हाँ, किसी का भी ले सकते हैं, किसी का भी. मैम आप बताइए, कोई कंपनी का देना चाहे तो आप कंपनी का जो मर्जी हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल का है, किसी का भी ले सकते हैं आप. ओके सर, थैंक यू. सर यूटिलिटी कहाँ से मिलेगी हमको ये वाली? मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मैडम. राजेश जी को मैंने सर थैंक यू. सर अगर एक ही, सॉरी सर अगर एक पैन नंबर में मल्टीपल जीएसटी नंबर होते देन? हाँ, इसमें देखिए ना, ये देखिए फर्स्ट है, इसके बाद ये सेकंड है, इसके बाद अगर आपको थर्ड देखना है तो ये थर्ड है जी. अगर 5-6 है देन? सब आ जाएंगे. अगर सर 5-6 है तो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी छोड़ दो कुछ, आप मेरे को अलग से फोन कर लेना सर, थोड़ा बहुत तो हमारे लिए भी. ओके सर, थैंक यू. यार भाई, सारे के सारे आपको वन टाइम तो मैं दे ही दूंगा सर. 5 हो या 500 होंगे तो 500 बना के दे दूंगा सर, कोई बात नहीं. ओके, ठीक है ना जी. और इसके अंदर एक मैंने मल्टीपल वैलिडेशन भी है. अगर आप अपना जीएसटीएन नंबर डालोगे यहाँ पे, तो उसके बेस पे आपको ये बता देगा कि वो जीएसटीएन नंबर ठीक है या गलत है, ये भी आपको बता देगा यहाँ पर. और फिर उसके बेस पे आप जो है, इसमें ये ट्रू या आपको ये फॉल्स हो जाएगा. कल को अगर आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, सपोज आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, ये देखिए लेगा ही नहीं आपसे. और अगर आपने ये इसकी जगह नंबर डाल दिया सपोज आपने, ये देखिए आपको बोल रहा है कि पैन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपने लास्ट में जो है ये करेक्टर डाल दिया. 10 करेक्टर से कम डालेंगे तो ये लेगा ही नहीं.
और अगर 10 करेक्टर डाल दिए लेकिन वो गलत है तो ये आपको बता देगा कि पेन का जो हमारा होना चाहिए कि फर्स्ट 5 करेक्टर शुड बी अल्फा, ये आपको बता देगा पेन इज नॉट करेक्ट। राइट सर? चलिए जी, अभी हम आप सर आते हैं। रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट्स अगर है, क्या सर? रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट्स। हाँ हाँ, ये डिफरेंट स्टेट्स में आप डालो ना, ये देखिए आप जो भी स्टेट्स आप चूज करेंगे आ जाएगा। सर ये 1 by 1 कर सकते हैं, मल्टीपल करने होते हैं वन टाइम में? वन बाई इसमें देखिए मल्टीपल वैलिडेशन है ना सर, यहाँ पे आप दीजिए, यहाँ पे देखिए ये स्टेट कोड है, ये आपका पैन नंबर है, यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ ये आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा। क्या नहीं सर, मेरे मल्टीपल नंबर्स हैं, जैसे 1 to 100 नंबर्स थे, तो वन शॉट में ऐसा कुछ नहीं होगा? राजेश जी टाइम का मैं है तो सही, ये दे दिया सर, ये मैंने आपको दिया ना सर, 5 नंबर्स के लिए मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे देखिए एक साथ 5 नंबर भी देख सकते हैं सर आप। ओके, ठीक है सर। सर आपको डेटा कहाँ से मिल रहा है? दिस इज द गवर्नमेंट डेटा। क्या जी? आपको ये डेटा कहाँ से मिल रहा है सर? सर ये डाटा तो मैं तो कह रहा हूँ मिल ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो आप पैन नंबर अप्लाई करोगे और आपको आज ही आया पैन नंबर, मैं उससे आपको बता दूंगा कि आप अगर 2 साल बाद जीएसटीएन नंबर अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट आपको क्या जीएसटीएन नंबर देगी आपको। ओके सर। तो ये जो है ये लॉजिक है सर, ये जो गवर्नमेंट ने जो लॉजिक अपना डाल रखा है पोर्टल में, उस लॉजिक को मैंने क्रैक करके और एक्सेल को पढ़ा दिया है, और एक्सेल जो है वो मेरे को बता रहा है, मेरे को कोई नेट की मैं कोई फैसिलिटी नहीं ले रहा इसके अंदर सर। अच्छा अच्छा, मतलब अगर मैं आपको अपना पैन नंबर दूं और ऑलरेडी उस पे कोई जीएसटी है तो वो शो नहीं करेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? या वो भी शो कर देगा? करेगा, वो भी करेगा। अरे सर मैं कह रहा हूँ आपने फॉर्मूला के हिसाब से ही कर देगा। क्या जी? वो आपके फॉर्मूला के हिसाब से ही कर देगा, वो गवर्नमेंट डेटा से लिंक नहीं होगा। मतलब इन फ्यूचर क्या जीएसटी नंबर बनेगा वो बता देगा? वो भी बता देगा और पुराने वाला भी बता देगा कि अगर आपने पुराना अप्लाई किया है, क्योंकि उसका एक लॉजिक है, गवर्नमेंट जिस लॉजिक से ले रही है उसी लॉजिक को मैंने एक्सेल को दे दिया है। ये मैक्रो से कराया है सर आपने? हाँ जी सर, हाँ जी। तो आपको ये फाइल मिल गई है सर, आप इसको खूब R&D करो। अगर कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप, मेरा एक चैनल है, मैं अपना फोन नंबर वगैरह शेयर करूंगा, आप वहां पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा जो नहीं है सर, कहाँ से मिलेगी? कोई नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा भैया जी, मैं आपको शेयर करूंगा, मीटिंग के बाद शेयर कर दूंगा। हेलो हेलो, हाँ कौशल जी बोलो। सर इसमें एक इशू ये आएगा, अगर किसी ने जीएसटी जैसे अभी अप्लाई नहीं करा और हमने पैन नंबर डाला तो वो वहाँ पे पैन नंबर शो करेगा, बट अपने को पता ही नहीं चलेगा पैन नंबर है या नहीं है। सर वो तो अब आपने देखना है ना सर, पैन नंबर है या नहीं है, वो तो जो पैन नंबर आप नहीं, पैन नंबर तो नहीं, पैन नंबर तो है, बट वो पार्टी रजिस्टर्ड है ही नहीं है, वो कैसे वैलिडेट करेगा? आप बता रहे हो ना, फर्स्ट नंबर से वो कलेक्ट करके बता देगा कि ये नंबर अलॉट होने जा रहा है। हाँ जी। तो ये सीट ये रिफ्लेक्ट करेगी ना कि ये नंबर अलॉट होएगा, पर ऑलरेडी अलॉटेड है या नहीं है, इस वाली सीट में कहीं कंफर्म नहीं हो रहा ना सर इस चीज के लिए। फिर तो सर मैं तो क्या है, मैंने कोई गवर्नमेंट से तो लिया नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये पैन नंबर के अगेंस्ट में ये जीएसटी नंबर या तो है या आएगा, मिलेगा। दोनों में से एक चीज होनी है, बस मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ। तो बेटा अपने को जी, हेलो हाँ जी, हेलो, तो मैं आरके जैन बोल रहा हूँ, और मेरे ख्याल में हमारा जो टॉपिक है वो डाटा क्लीनिंग के ऊपर है, ना कि जीएसटी नंबर को फाइंड करने का। राइट ठीक है सर, इसको जीएसटी नंबर को फाइंड करने का थोड़ा प्रोसेस छोड़ के एक्सेल में डाटा क्लीनिंग पे अगर हम फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जीएसटी का क्या नंबर मिलेगा 2 साल के बाद, वो एक इशू नहीं है। बिल्कुल इशू है वो डाटा क्लीनिंग पे है, उसके ऊपर हमको सर आप वो अच्छा रहेगा। सर क्वेरीज एंड में ले मेरे साथ। ठीक है सर, ये देखिए सर, हम जो कह रहे हैं कि डाटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे आप भाई आज की डेट में हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कोई भी रिपोर्ट अगर हम बनाते हैं सर, कोई भी हमारे पास डाटा आता है, वो जो डाटा होता है सर वो हमारे फॉर्मेट में नहीं होता, या एक्सेल उसको नहीं समझ पाता, और उस डाटा को हमारे को ठीक करने के लिए हमारे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है सर। तो कैसे उस डाटा को हम काफी फास्ट वे में क्लीन कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास डाटा आए और एक उसको प्रॉपर एक्सेल जिसमें समझ पाए, उस फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर दूं, और उसके बेस पे मेरे को कोई पिवट बनानी है, कोई डैशबोर्ड बनाना है, कोई एनालिसिस करना है, कोई मेरे को उसके बेस पे कोई कैलकुलेशन करनी है, वो बिल्कुल आराम से बड़े इजीली हो जाए। तो उस सेशन हाँ जी, तो उसके लिए मैं आपको कुछ 10 तरह के डिफरेंट मेथड्स में आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप का डाटा है, क्या प्रॉब्लम है उस डाटा में,
और कैसे हम उसको क्विकली जो है क्लीन कर सकते हैं सर। राइट सर। चलिए जी, एक तो सबसे पहले एक ये सर कुछ लाइन आ रही है मेरी, ये कैसे आप लोग वहां से कुछ हो रही है कुछ, ये स्क्रीन के ऊपर जो है ये जिसने ड्रॉ करी है सर वो क्लियर कर सकता है, उसको बोलिए जिसने भी ड्रॉ करी है वो क्लियर कर दे और ऐसे काटे ना हमारे। नहीं तो ड्रॉ किसने की है ये कोई भी मेंबर कर सकता है सर। अच्छा अच्छा, तो अब ये तो सर मेरे हाथ में तो है नहीं सर, ये तो प्लीज जिसने भी करा है डिलीट कर दीजिए और ऐसे दोबारा मत कीजिएगा। ये सर हाँ, ये पता नहीं कौन कर देता है लाइन। चलिए सर, ये देखिए, ये मेरे पास जो है कुछ नाम दे रखे हैं मैंने कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अब कई बार आपका डेटा जो होता है सर इस टाइप का होता है। अब इस डेटा के अंदर सर क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, जैसे मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे सैंपल लेके बता रहा हूँ, बट इन रियल केसेज आपके जो है डेटा ये बहुत ही ह्यूज हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सर, इसके अंदर देखिए ये स्पेस जो है, ये यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा स्पेस पड़े हुए हैं, बीच में स्पेस पड़ा हुआ है, कई बार लास्ट में भी आपका स्पेस हो सकता है, कहीं पे आपका स्मॉल कैरेक्टर है, कहीं पे बड़ा कैरेक्टर है जैसे। अब इसकी प्रॉब्लम क्या आती है जी, जब ये आप इसको रिपोर्ट बनाओगे किसी को अगर आप देते हो क्लाइंट को, तो वहां पे एक तो पहली बात है कि इसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस डेटा के ऊपर अगर आपको कोई लुकअप लगाना है, इस डेटा के ऊपर अगर आपने कहीं ना कहीं कोई एनालिसिस करना है, तो फिर आपको पता लगा कि दूसरा जो डेटा है आपका मास्टर है उसके अंदर ये डेटा बिल्कुल क्लीन है, तो फिर आप इसको क्लीन नहीं कर पाते। तो अब इसको जनरली हम करने के लिए लोग क्या करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, वो सोचते हैं कि इसको कंट्रोल फाइंड करके और या कंट्रोल एच करके हम स्पेस दें और स्पेस को हटा दें, रिप्लेस विद ब्लैंक कर दें। लेकिन उसमें अगर कर दिया मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। जैसे रिप्लेस ऑल किया तो ये क्या हुआ, इसने स्पेस तो हटा दिया लेकिन इसने बीच का जो स्पेस था वो भी हटा दिया इसने। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि राम सिंह था, ये आकांक्षा गोयल थी, तो सारे के सारे कंट्रोल जेड किया और ये वापस से मैं ऐसे आ गया। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो है मेरा बीच का स्पेस रह जाए लेकिन साइड का जो स्पेस है वो मेरा हट जाए सर। तो इसको लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एक मेरे पास बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला है, ट्रिमिंग का फॉर्मूला है कि मैं ट्रिमिंग कर सकता हूं इसकी। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला के अंदर ये टेक्स्ट का फॉर्मूला है, ये देखिए। अब ऐसे फॉर्मूले तो काफी ज्यादा है यहाँ पे, बट ये आपने खुद ही आपने ढूंढने हैं, देखने हैं। बट ये जो ट्रिम का फॉर्मूला है अल्फाबेटिकली, यहाँ पे देखिए आपको ट्रिमिंग नजर आएगी। तो ये ट्रिमिंग क्या करता है, इसको अगर मैं सेल का रेफरेंस दूंगा और इसके बाद अगर मैं इसको ओके बोलता हूं, तो ये सिंगल स्पेस जो बीच में कोई स्पेस होगा उसको रखेगा, लेफ्ट में स्पेस हो, एंड में कोई स्पेस हो या बीच में एक से ज्यादा कोई स्पेस हो उसको ये हटा देगा। और अगर मैं इसको पकड़ करके अब ये नीचे मैंने इसको ड्रैग कर दिया तो ये देखिए मेरा पूरा का पूरा डेटा मेरा क्लीन हो गया सर। लेकिन ये जो क्लीनिंग हुई है ये मेरी केवल ट्रिमिंग हुई है, लेकिन मेरे ये जो कैपिटल अक्षर में जैसे देखिए कहीं पे मेरा जो है ना ये मणि रत्नम देखिए कितना बड़ा बड़ा मेरा ये नाम जो है, इसकी स्पेलिंग तो ठीक है लेकिन इसका जो है कहीं कैपिटल में है कहीं स्मॉल में है। तो इसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला यहाँ पे है कि कल को आपको कैपिटल में करना हो तो एक अपर का फॉर्मूला है या स्मॉल का फॉर्मूला है, एक है प्रॉपर का फॉर्मूला। तो अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे करूं इक्वल टू प्रॉपर, ये भी आपका टेक्स्ट का फॉर्मूला है और यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस अगर दे देता हूँ तो ये देखिए इसका फर्स्ट कैरेक्टर को ये जो है कैपिटल कर देगा और उसके अलावा जो है ये सारा का सारा आपका स्मॉल रहेगा। तो ये राम सिंह, आकांक्षा गोयल, अभय महाजन, ये पूरा का पूरा इसने प्रॉपर कर दिया। तो ये जो है डेटा क्लीनिंग आप इसकी आराम से कर सकते हो। तो इसके अंदर जो ये फॉर्मूले हैं टेक्स्ट के अंदर बड़े अच्छे अच्छे फॉर्मूले आज हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये देखिए इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपका जो है राइट का फॉर्मूला है, जैसे आपका जो है ये मैंने आपको दिखाया है, ट्रिम का फॉर्मूला हो गया, अपर का हो गया। तो ये आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है खुद ही और इसको आपने यूज करना है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैसे हमारे को सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है, देखिए इसके अंदर एक मेरा जो है सेकंड जो प्रॉब्लम आती है, कई बार मेरे पास जो डेटा होता है सर वो डेटा ऐसे आता है। देखिए अब इसके अंदर नाम है मेरे पास वीक 1, वीक 2, वीक 3, ये अलग अलग मेरी परफॉर्मेंस है या जो भी मेरी सेल है या जो भी डेटा है। अब यहाँ पे आप देखोगे पता लगा ये सूची जो है वीक 2 पे ये अपसेंट थी, ये अमित जो है ये फर्स्ट वीक में अपसेंट था, यहाँ पे मेरे पास ये था। अब इस डेटा की प्रॉब्लम क्या होती है सर, अब इसके अंदर अगर आप जो है ये लगाओगे, अगर आपने सम का फॉर्मूला लगाया सपोज करो ऑल्ट इक्वल टू इज द की, अब जैसे आपने सम किया तो ये ऑटोमेटिक नहीं ले रहा सर आपका। अगर मैंने यहाँ पे लगाया ऑल्ट इक्वल टू तो ये केवल यहाँ तक ले रहा है, 48 से लेके यहाँ तक ले रहा है, ऊपर ये क्योंकि ब्लैंक है तो ये इसको ठीक से समझ नहीं पा रहा सर।
तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि जहां जहां पे मेरे ब्लैंक्स पड़े हुए हैं, उन ब्लैंक्स के अंदर आई वांट कि आइदर इसके अंदर कोई जीरो आ जाए, या इसमें कोई नोट अवेलेबल NA करके आ जाए, या इसमें ब्लैंक करके लिखा हुआ आ जाए, सो दैट कि ये जो मेरा डेटा है, पूरा का पूरा जो डेटा है, ये मेरा ठीक से लगे। क्योंकि क्या होगा, एक्सेल जो होता है जी, जब तक उसमें डेटा टेबुलर ना हो तब तक वो ठीक से समझ नहीं पाता इसके अंदर। तो ये काफी इशू होता है डेटा के अंदर। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसमें डेटा में जा करके और मैनुअली यहाँ पे जीरो डालूं, ऐसे कि मैं यहाँ पे जाऊं और मैनुअली जा करके यहाँ पे जीरो डालूं इसके अंदर, फिर यहाँ पे जा करके और जीरो डालूं, और अलग से मैं इसमें जा करके कलर करूं ताकि मेरे को बाद में ध्यान भी रह जाए। तो ये तो मेरे लिए बड़ी टीडियस जॉब हो जाएगी। अगर डेटा मेरा ह्यूज है भाई, 10 कॉलम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ रोज है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सेल के अंदर एक बहुत ही बढ़िया कमांड है जो कि आपको यूज करनी चाहिए। क्या यूज करनी चाहिए उसके अंदर सर? कमांड, इस पूरे डेटा को, जितना भी आपका डेटा है, जहां पे आप चाहते हो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सर आप इसके अंदर जो है, कहां पे आपने ये होम का जो बटन है, यहाँ पे होम के अंदर जब जाएंगे, फाइंड एंड सिलेक्ट करके एक स्क्रीन है यहाँ पे, देखिए, ये देखिए इसके अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट। अब यहाँ पे जब जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये देखने में ये ठीक लगे। ये देखिए, यहाँ पे जब जाएंगे तो इसके अंदर यहाँ पे नजर आएगा आपको फाइंड एंड सिलेक्ट। ये देखिए, अब इसके अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है, गो टू स्पेशल है। तो यहाँ पे आपको देखिए गो टू स्पेशल, ये स्पेशल वाली जितनी भी चीजें हैं, मतलब हम देखिए कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारे को बोलते हैं जी पाव भाजी ले लो, और एक तरफ होता है कि स्पेशल पाव भाजी ले लो, तो हम भी सोचते हैं यार ये स्पेशल पाव भाजी खाएंगे, कोई डेली थोड़ी आते हैं। तो ऐसे आपको ये देखना है कि यहाँ पे गो टू स्पेशल है, देखिए क्या चीज है। ऐसे मैंने इसको क्लिक किया, एक स्क्रीन मेरे पास खुल गई। ये जो स्क्रीन खुली है, ये बहुत ही बढ़िया इसमें है चीजें, एक से एक। अब इसमें देखिए क्या दे रहा है आपको, ये बोल रहा है कि जो डेटा आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उस डेटा के अंदर मेरे को ब्लैंक सिलेक्ट करने हैं। तो ये देखिए, ये कह रहा है गो टू स्पेशल में ब्लैंक्स को मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद जैसे मैंने इसको ओके किया, तो मेरे जितने भी ब्लैंक्स थे सर, वो सारे के सारे मेरे सिलेक्ट हो गए। और अब इनमें जाकर के मैं चाहता हूं कि इनको कलर करना है, सपोज करो मेरे को, तो मैं इसको कलर भी कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इसमें सब में जीरो डालनी है। अब अगर मैंने जीरो डाल दी एक में, तो ये देखिए एक जगह पे जीरो आई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब में जीरो आ जाए। तो अगेन यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट की है जी। अगर मैं सिंपल एंटर मारूंगा तो एक ही जीरो आएगी, बाकी नहीं आएगी, तो मेरे को सब में मारनी पड़ेगी। फिर इसकी जगह मैं क्या करूं, जब जीरो मैंने टाइप किया, एंटर मारने की जगह अगर मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस कर लिया, कंट्रोल को मैंने प्रेस करके, और अगर मैंने एंटर का बटन दबा दिया, तो ये देखिए सारे के अंदर मेरी जीरो आ जाएगी। कंट्रोल और एंटर, ये मेरी शॉर्टकट की हो गई जी, कि कंट्रोल एंटर से उसमें जीरो आ गई। इसकी जगह अगर मेरे को एरर लिखना था, या मैंने लिखना था कि टेक्स्ट में लिखना था ब्लैंक, या मैंने लिखना है दिस सेल इज ब्लैंक, ये मेरे को लिखना है यहाँ पे, और कंट्रोल एंटर कर दिया, ये देखिए सब जगह पे मेरा लिखा आ गया दिस सेल इज ब्लैंक। तो ये जो है कमांड, आप इससे डेटा को आप जो है क्लीन कर सकते हो। अब इसके बाद जब आपने जीरो डाल दिया इसके अंदर और आपने क्लीन कर लिया, फिर उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे अगर आपने ऑल्ट इक्वल टू लगाया यहाँ पे, ये देखिए ऊपर तक अपने आप से लग गया। और ऑल्ट इक्वल टू अगर सब में लगाना है, तो सबको सिलेक्ट करके अगर आपने ऑल्ट इक्वल टू कर दिया, ये देखिए सब के अंदर आपका इकट्ठा भी आपका फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट और बता देता हूं मैं आपको इसकी सम लगाने के लिए, कि जब आपको इसको सम करना है, इकट्ठा अगर सम करना है, तो कैसे आप इसको बढ़िया से सम कर सकते हो, जल्दी से कर सकते हो। तो उसका तरीका ये है कि जब आप इसको पूरे को सिलेक्ट करोगे, पूरे को सिलेक्ट कर लिया जैसे डेटा को, और करने के बाद आपने, और अगर ऑल्ट इक्वल टू दबा दिया, तो अपने आप से नीचे जो है ना सम आ जाएगा आपका। अब आप चाहते हो कि मेरा सम नीचे भी आ जाए और राइट में भी आ जाए, तो क्या कर सकते हो, आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद एक कॉलम एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लीजिए ब्लैंक, और एक रो एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने जो है ना रो नंबर 18 को सिलेक्ट कर लिया और कॉलम नंबर आई को सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद, और मैं की दबा दूं, बटन दबा दूं, ऑल्ट इक्वल टू, ऑल्ट के साथ इक्वल टू का बटन दबा दिया मैंने। ये देखिए जैसे मैंने ऑल्ट इक्वल टू का बटन दबाया, तो मेरा जो है ये पूरा का पूरा सम का फॉर्मूला लग गया जी। ये देखिए मैं आपको अलग से कलर करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये मेरा फॉर्मूला इसमें नजर आएगा आपको।
और इसी तरह से यहाँ पे भी मेरा फॉर्मूला लग गया। तो ये आपको अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जी, कि मेरा जो है सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैसे हम लगा सकते हैं जी। ये देखिए, ठीक है जी। तो ये मेरा एक दूसरा तरीका, मैंने आपको एक डाटा बताया, एक सिनेरियो बताया कि कैसे मेरा डाटा है और वो ब्लैंक डाटा है, कैसे मैं उसको कितनी जल्दी से मैं उसको क्लीन कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको एक टेबल के रूप में बना सकता हूँ ताकि मेरे को बाद में उसमें पिवट लगानी है, कोई भी काम करना है तो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं जी। अब एक डाटा मेरे पास ऐसे आता है जी, ये देखिए। अब ये डाटा क्या है जी, मेरा जो डाटा है, ऐसा कई बार आपके पास रिपोर्ट आती होगी या कई बार आपने पिवट टेबल बनाई होगी। पिवट टेबल से सर क्या होता है, पिवट टेबल के अंदर कि यहाँ पे जो क्या कहना चाह रहा है कि जो मेरा डाटा है ये, कि ये जो सेल है इस रीजन में, बैटमैन मेरा कोई सेल्स पर्सन है, कूलमैन कोई सेल्स पर्सन है, उसने एप्पल के प्रोडक्ट की 28 जुलाई को 18,000 रुपए की सेल की। अब ये जो नीचे जो आ रहा है सर, ये ब्लैंक आ रहा है, राइट सर, ये देखिए ब्लैंक आ रहा है। लेकिन ये ब्लैंक का मतलब ये है कि ये अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब ये भी मेरा ईस्ट है, ये मेरा बैटमैन है और ये मेरा एप्पल है। तो ये भी सेल आपकी 3 अगस्त को है। और इसी तरह से अगर ये जो होगा, ये यहां तक की जो सेल है मेरी, ये सारी की सारी ईस्ट ने, बैटमैन ने एप्पल के लिए की है। लेकिन यहाँ पे आकर के उसने ओडी की सेल की है, लेकिन ये सेम ही है मेरे। तो मैं अगर इसको जाकर के, अब मैं जो ये कर रहा हूँ काम, ये मैनुअल कर रहा हूँ सर। मैनुअल अगर करना पड़ जाएगा मेरे को काम, तो आप सोचिए कितना टाइम लगेगा। मेन हम प्रोफेशनल्स आदमी हैं, हमारे लिए टाइम की कीमत है जी। हम जो फीस लेते हैं अपने समय की, अपनी नॉलेज की जो है वो फीस लेते हैं। तो अगर किसी काम को अगर करने में हमारे को 2 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, 1 दिन लग रहा है, अगर उसी काम को मैं 1 मिनट में, आधा मिनट में, 2 मिनट में अगर बढ़िया ढंग से कर पाऊं, तो वो मेरी जीत है जी। तो उसके लिए जो एक्सेल है, ये बहुत ही शानदार जो है सॉफ्टवेयर है, बढ़िया चीज है। मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ कि ये जो हवाई जहाज है जी, ये सबके पास में, लेकिन इसको हम हवाई जहाज तो दूर, हम मतलब इसको जो है ना साइकिल की तरह भी यूज नहीं करते। कई लोग तो साइकिल कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, उस साइकिल को भी अपने कंधे पे उठा करके और पैदल पैदल चल रहे हैं जी। मतलब इसको भी बोझ बना लिया और उसके बाद वो पैदल पैदल चल रहे हैं। तो हमने इसको हवाई जहाज चलो नहीं बना सकते, तो इसको चलो यार बस की तरह यूज करो, ट्रेन की तरह यूज करो, कार की तरह यूज करो, कुछ तो आप इसको यूज करो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अगर आप करोगे तो आप कितना टाइम बचा लोगे। अब देखिए ये जो डेटा आया आपने, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो सर, बहुत ही बढ़िया चीज है। अभी मैंने जो आपको कमांड बताई थी, बिल्कुल वही कमांड इसके अंदर चलेगी, बस थोड़ा सा आपने एक अलग से करना है। एक आपको पता होगा कि एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला हम डालते हैं, जैसे मैंने इक्वल टू और यहाँ पे ये कर दिया, और इसको मैंने 10% निकालना है इसका, तो ये देखिए 10% आ गया। अब इस फॉर्मूले को अगर मेरे को नीचे भी लगाना है तो अलग फॉर्मूला तो नहीं लगाऊंगा ना, मैं इस फॉर्मूले को नीचे अगर खींचूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, जब इसको कर रहा है तो ये इसको देख रहा है। जैसे मैंने इसको नीचे खींचा तो ये एक सेल नीचे चला गया, जब मैंने इसको किया तो ये इधर चला गया। इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो ये देखिए इसके बगल वाले पे चला जाएगा। तो ये एक्सेल का एक फंडा होता है जी, कि जो एक्सेल के अंदर रेफरेंसेज होते हैं वो रिलेटिव रेफरेंस होते हैं बाय डिफॉल्ट, जब तक कि हम उसको रिलेटिव से एब्सोल्यूट में या फिक्स चेंज ना करें। तो आपने यहाँ पे 2 चीजों का आपने यूज करना है, और वो 2 चीजों का यूज करके ये जो काम आपका घंटों का काम है, जिसमें गलती होने के चांसेस हैं, जिसके थ्रू आप टाइम भी लगाओगे, गलती भी हो सकती है, क्योंकि कितना भी ध्यान से करे, आप खुद करो, स्टाफ अच्छे से अच्छा करे, कहीं ना कहीं उससे बटन जो है ये गोदरेज को खींचते हुए पता लगा एडिडास के ऊपर भी चला गया, ये भी हो गया गलत जी आपका। तो इसको हमने ठीक करने के लिए क्या करना है जी, इस डेटा को हमने सिलेक्ट करना है। ये देखिए ये डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया जी, और ये सिलेक्ट करने के बाद अगेन मेरे को कहाँ जाना है जी, होम के ऊपर गया, और ये देखिए फाइंड एंड सिलेक्ट, ये जो आपको नजर आ रहा है चश्मा, ये जो लेंस नजर आ रहा है ना जी, लेंस, उसी में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। यहाँ पे मैं गया और जाने के बाद मैंने इसमें उसी पे चला गया गो टू स्पेशल, तो गो टू स्पेशल पे गया तो अगेन वही स्क्रीन आ गई मेरी। अब की बार जो स्क्रीन आई सर, इसके अंदर मैंने फिर से ब्लैंक को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को जो काम करना है वो ब्लैंक्स के ऊपर करना है। अब की बार मैंने क्या किया, इसको ओके बोल दिया, अगेन मेरे सारे के सारे ब्लैंक सिलेक्ट हो गए। मैं एक बार कलर कर देता हूं ताकि आपको अलग से नजर आए जी, ये ब्लैंक मेरे सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं जी, राइट जी, ये मेरे सिलेक्ट हो गए। अब जो मेरा एक्टिव सेल है जी, एक्टिव सेल किसको बोलते हैं जी, एक्टिव सेल मेरे बोलते हैं ये जो देखिए ऊपर लिखा हुआ ना C3, मतलब मेरा C3 एक्टिव सेल है। अब मेरे को C3 में फॉर्मूला डालना है, वो क्या डालना है मेरे को, C3 में
C2 वाली चीज मेरी C3 में आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला डाला इक्वल टू C2 कि मेरा जो C3 में है वो C2 में है वो C3 में आ जाए, मतलब ऊपर वाली चीज को नीचे लेके आ जाए। अब अगर मैं इस पे सिंपल एंटर मारूंगा तो ये देखिए ये केवल ऊपर वाली चीज को ये लेके आ गया, लेकिन एक एक करके फिर से करना पड़ेगा मेरे को। तो उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं सर यहाँ पे कि ये ऑटोमेटिकली ठीक से ले सब में हो जाए, तो मैं यहाँ पे फिर से डालूंगा इक्वल टू C2। और अभी जो मैंने आपको कमांड बताई थी एंटर की जगह मैंने क्या करना है कंट्रोल एंटर, तो मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और जैसे ही सर मैंने एंटर कर दबा दिया यहाँ पे, तो ये देखिए इसने क्या किया ऑटोमेटिकली सबके अंदर ये ऊपर वाली चीज को यहाँ पे ऊपर गया, तो यहाँ पे इसके ऊपर देखा इसने, यहाँ पे इसके ऊपर देखा, तो जो जो ब्लैंक थे वो उसके अपने ऊपर वाले सेल को नीचे लेकर के आ गया और ये मेरी पूरी की पूरी सीट जो है फिल हो गई जो मेरे को डाटा चाहिए था। जहाँ पे ईस्ट के नीचे ईस्ट आ गया, जहां जहां पे मेरा डाटा था वो सारा का सारा डाटा फॉर्मूले के थ्रू आ गया। अब इस डाटा के ऊपर अगर मेरे को पिवट लगानी है, मेरे को फिल्टर लगाना है, अगर मेरे को कोई भी एक्शन लेना है वो मैं इजीली ले सकता हूँ सर। अदरवाइज जो मेरा पहले डाटा था उसके अंदर ना तो मैं फिल्टर लगा सकता हूँ ना मैं उसमें पिवट लगा सकता हूँ। वो डाटा मेरे लिए वो जो रिपोर्ट है या जो भी है वो बिल्कुल बेकार है। और इसके लिए मैंने अच्छी भाई कंपनियों में अच्छी फर्मों में लोगों को देखा है टाइम लगाते हुए, और बात टाइम से ज्यादा ये है कि एक्यूरेसी की बात है सर, कि एक्यूरेसी उसमें नहीं रहती। कहीं ना कहीं कितनी भी गलत आप करोगे कोशिश, कहीं ना कहीं छोटी सी गलती छूट जाएगी और वो गलती जो है कहाँ पे जाके कितना अफेक्ट डाल सकती है, ब्लंडर कर सकती है, वो तो समय ही बताएगा सर। तो एक किया आपको मैं डाटा को क्लीन करने के लिए, डाटा को एक वर्केबल करने के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं कि आप ब्लैंक्स और कंट्रोल एंटर दोनों को यूज करके कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं सर। अब मैं आपको एक दिखाता हूं जी, एक जादू। ये आप जादू देखेंगे, ये जो है बहुत ही बढ़िया जादू, ये 2013 वर्जन में आया जी, 2013। ज्यादातर सीए फर्म जो है वो आज भी मैंने देखा है कुछ पायरेटेड के लिए, कुछ 1500 रुपए बचाने के लिए वो सोचते हैं जी हमारा तो काम चल रहा है, और वो पुराने वर्जन पे काम करते हैं 2007 पे, 2010 पे, 13 पे। लेकिन सर अभी हम 2020 में बैठे हुए 2020, तो अभी एक्सेल के इतने वर्जन आ चुके हैं, 7 के बाद 10, 13, 16, 19 भी आ चुका है, और ऑफिस 365 उनका सबसे बेस्ट वर्जन है जिसके अंदर हमेशा अपडेट्स होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि जो भी आपको कोशिश करो कि 2-4-5 हजार रुपये हमारे को सॉफ्टवेयर पे खर्च करने पड़ जाए साल में, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उससे आपका टाइम जो है काफी बचेगा सर। और वो टाइम हो सकता है कई बार आप उसमें हो सकता है साल में लाख रुपए 50,000 रुपये अपना टाइम बचा लो, और वो बड़ी हेल्प करेगा सर आप। अब सर इसके अंदर हमारे को क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो एक कमांड आई है मेरे पास, ये कमांड आई है सर मेरी 2013 के अंदर, 2013 के अंदर। 2013 को अगर हम यूज करें तो वहां पे आपको 2007 में नजर नहीं आएगी। ये कहाँ पे है, ये डाटा के अंदर आप देखिए, जब डाटा में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये कमांड जो नजर आ रही है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ सर। यहाँ पे इसके अंदर देखिए जब ये कर्सर को आप रोकेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नजर आएगा फ्लैश फील्ड। ये देखिए डाटा टूल्स का ये बकेट है, उसमें नजर आ रहा है, लेकिन 2013 में नजर आएगा सर, या उसके बाद वाले वर्जन में। इसका शॉर्टकट याद कर लीजिए कंट्रोल ई। ये सर बिल्कुल मैजिक है, जो आज की डेट में आईटी के अंदर कहते हैं ना जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो ये सर मशीन लर्निंग का काम करेगा ये, कि आप इसको बता दो काम और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करेगा। इसको एक छोटे से बच्चे की तरह इसको थोड़ा सा एक पैटर्न दे दो, बिना किसी फॉर्मूले के ये आपके लिए काम करके देगा सर। अब ये कैसे काम करेगा सर, ये देखिए इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि आपको कोई ये बोल दे कि आपका ये जो डाटा है सर, इसके अंदर आपको नंबर्स को अलग करना है जी, नंबर्स को। लेकिन इसके अंदर ना तो कोई कोमा है जी, ना कोई फुल स्टॉप है, ना कोई स्पेस है, तो आपको नंबर और ना इसमें कोई फिक्स पैटर्न है। ये नंबर आपका बीच में कोई 2 कैरेक्टर का है, कोई 5 कैरेक्टर का है, कोई 8 कैरेक्टर का है। अब अगर आप चाहते हैं सर कि ये जो डाटा है आपका हो जाए, तो इस जादू का यूज कीजिए। हो सकता है कुछ लोग 2013 3 साल से यूज कर रहे हो, 5 साल से यूज कर रहे हो, लेकिन उनको भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि अपडेट नहीं करते वो। अब घर में अगर आपने कोई योगा की बुक रख ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बुक रखने से और आपको जो है पता लगा जी आपका पेट कम हो जाएगा, या पता लगा जी आप जो है बिल्कुल सही है, एकदम तंदुरुस्त हो जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से खाली कंप्यूटर खरीदने से या सॉफ्टवेयर खरीदने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद आपको अपडेट भी होना पड़ेगा कि क्या नई चीजें आई है हमारे पास। तो अब जैसे आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे सर डाल दिया 12,
राइट। एक आपने बस इसको दे दीजिए, जैसे 12 डाला, अब इसको आप बोल दीजिए कि मेरे को 12 जैसा ही सारा काम करना है। अब कहीं पे भी आप जाइए सर, यहाँ जाइए, कहीं पे भी जाइए और जाकर के कंट्रोल ई दबा दीजिए सर। जैसे ही कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये बिना किसी फॉर्मूले के आपका पूरा डाटा ये क्लीन करके ये देखिए बीच में से लेके आ जाएगा। अब कई बार आपको डाटा होता है कि नहीं मेरे को तो ऐसे नहीं करना जी, मेरे को तो इसके अंदर अलग से करना है, जैसे मेरे को बाई ये और अंडरस्कोर और मेरे को करना है हेलो और अंडरस्कोर 12 करना है। तो ये देखिए जैसे आपने ये डाला पैटर्न, अब की बार फिर से कंट्रोल ई कर दिया, ये वही पैटर्न के बेस पे आपका काम कर दिया इसने, बिल्कुल सेम। तो ऐसे आप जितने मर्जी इसमें काम करो, जैसे इसमें है विजय अग्रवाल, अब आप चाहते हो कि मेरा ये हो जाए वी डोंट अग्रवाल हो जाए, अपने आप इसका ये, अब जाकर के कहीं भी कंट्रोल ई कर दीजिए, ये देखिए अपने आप से इसने कर दिया। अब आप कहते हो कि मेरे को तो केवल लास्ट कैरेक्टर चाहिए, अग्रवाल डालिए, कंट्रोल ई कर दीजिए, ये देखिए अपने आप से इसने ले लिया। तो ये बहुत ही बढ़िया मैजिक जो है 2013 से स्टार्ट हो रखा है, 7 साल हो गए इस मैजिक को आए हुए, लेकिन हम इसको बिल्कुल पहचान ही नहीं रहे कि कितने हमारे घंटे दिन ये बचा सकता है। और इसके लिए सर ये काम अगर हमारे पास अगर ये 50,000 लाइनें हों तो हो सकता है सर मेरे को 5 घंटे लग जाए, पूरा दिन लग जाए, फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि एक्यूरेट है या नहीं। लेकिन इसको सर केवल 1 सेकंड 2 सेकंड लगनी है, इसके लिए रिकॉर्ड 50,000 या 5 लाख से मायने नहीं रखता। ये तो बिल्कुल एक्सेल है, जैसे हम जोड़ करना है इसको, अब वो जोड़ आपको 5 लाइनों का करना है कि 5 लाख लाइनों का करना है, ये तो एक्सेल जी टाइम तो उतना ही लगाना है, इसको कोई अलग से समय नहीं लगेगा। तो आप इसकी कैपेसिटी को पहचानिए और ये फ्लैश फिल से आप डाटा की क्लीनिंग बहुत जल्दी से कर सकते हो। वन टाइम क्लीनिंग आपको करनी है, बहुत ही बढ़िया से कर सकते हो। अब जैसे ये आपका ये है, इसको नाम को आपने आगे पीछे करना है। कई बार आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि मेरे को यार पहले लास्ट नेम लेना है फिर फर्स्ट नेम लेना है, तो जैसे आप ये करोगे बहन सपना आपने उल्टा कर दिया, अब कहीं पे भी जाकर के कंट्रोल ई दबा दीजिए। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा नाम आपका ऑटोमेटिकली सारा का सारा ये आपका इसने करके दे दिया जी, राइट। अब आप कहोगे इसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है जी, आप कहोगे यार इसके अंदर ये तो हो गया लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है जी इसमें। अब वो क्वेश्चन क्या है जी, यार ये इसमें तो 3 कैरेक्टर भी है मेरे, इसमें देखिए योगी राज जी है, दीपक कुमार है, नरेंद्र डी मोदी है, तो इसको मैं क्या करूं जी, मेरे को तो इसको क्या करना है। कोई बात नहीं, ये बड़ा समझदार है, बहुत ही आपका हाई फाई ये है। इसमें आप क्या कर सकते हैं सर, इसको आप बोलिए कि मेरे को ये है, आप किसी भी एक कैरेक्टर को आप ठीक ले लीजिए, इसको फिर से करिए F2 दबाइए और आप बोलिए कि राज को कहाँ डालना है, आपको बीच में डालना है कि लास्ट में डालना है, जो भी आप डालोगे इसको आप डालिए और डालने के बाद सिंपल एंटर मार दीजिए। जैसे ही सर आपने एंटर किया, अब ये देखिए सारे के सारे मोदी जी भी ठीक हो गए, ब्रिजवासी जी भी आ गया ठीक से, ये नीचे भी आ गया। तो इसने उस पैटर्न को पहचान लिया, इसको ये पता लग गया कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे, नाम ऐसे थे जिनमें 3 हैं, और आपने जैसे उसको ठीक किया सबको इसने ठीक कर दिया। और सर ये जो चलेगा ये केवल ऐसा नहीं है कि आपका केवल एक कॉलम पे चलेगा, ये मल्टीपल कॉलम पे भी चलेगा। तो जैसे कई बार आपको नरेशन बनानी है किसी डाटा के बेस पे, देखिए ये है, अब आप इसको क्या कर सकते हो सर, 4 के बेस पे आपको नरेशन बनानी है। वी परचेज्ड 15 लैपटॉप्स इन जैन फ्रॉम विजय, जैसे आपने ये डाल दिया सर, इसका जो है ये कर दिया, ये आपने डाल दिया जी। अब इसके बाद जैसे ही आपने डालने के बाद इसको कहीं पे भी जाके कंट्रोल ई कर दीजिए। जैसे कंट्रोल ई किया, ये देखिए अपने आप से इसने 20 प्रिंटर फैब राज ऑटोमेटिकली सर इसने 1 सेकंड के अंदर आपका, अब ये लाइनें आपकी 4 होंगी 4 लाख होंगी, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस सर, एनी डिफरेंस। इट विल गिव यू विद ए जस्ट क्लिक, इट इज गोइंग टू गिव यू आंसर। इसी तरह सर ये फ्लैश फिल कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, कुछ और भी कॉम्प्लेक्स भी चीजें कर सकता है। जैसे कि आपके पास ये डाटा होता है, जैसे इनपुट डाटा है, ये देखिए अब इस इनपुट डाटा के अंदर आपके पास एक ही लाइन में कई बार आपके सॉफ्टवेयर से, ERP से, कहीं क्लाइंट से कोई बैंक की फाइल आ गई, उसमें एक ही जगह पे ऐसे पूरा डाटा है ये। अब आप इसको अलग करना चाह रहे हो, तो कुछ लोग जो थोड़ा बहुत एक्सेल जानते हैं उनको लगता है यार ये तो हम टेक्स्ट टू कॉलम से कर लेंगे। अब वो डाटा में जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं और यहाँ पे जाके नेक्स्ट में जाके और स्पेस दे देते हैं और फिनिश कर देते हैं। लेकिन अब ये क्या हुआ, इसने तो गड़बड़ कर दी। ये देखिए एडमिन वाला ये इधर जाना था, 84 इधर जाना था, ये इधर जाना था, लेकिन अब इसको मैनुअल करेंगे वो सारा काम। लेकिन नहीं सर, आपने आज से आज ऐसा नहीं करना। मैं कंट्रोल Z कर दिया, आप इसको 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए। मैनेजमेंट करना है जी मेरे को, तो यहाँ पे
एंटर मार दीजिए। यहाँ पे मेरे को करना है जी 45, यहाँ पे मेरे को करना है 15.10%। ये आपने ये करना है कि जी मेरे को तो जी ऐसे ऐसे ये चीज अलग अलग करनी है जी। आपने इसको एक एग्जांपल दे दिया जी। अब आप सर कैसे क्या करोगे, यहाँ पे जा करके कहीं भी इसमें जाओ, पहले इसमें जाओ या इसमें जाओ और कंट्रोल ई दबा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जाइए, कंट्रोल ई दबा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जाइए, कंट्रोल ई दबा दीजिए। अब ये देखिए आपका पूरा का पूरा डेटा इसने 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल क्लीन कर दिया। इसके अंदर चाहे स्लैश थे, आपके स्पेस थे, इसने कोई भी इसमें टाइम नहीं लगाया सर। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि आप इसके नौकर ना बन के इसको नौकर बनाइए। ये बहुत ही शानदार ढंग से काम करेगा। जैसे सर कंट्रोल ई से पहले कुछ सेलेक्ट भी करना है? नहीं सर, कोई सिलेक्ट नहीं करना, उसको केवल आपने एग्जाम्पल देना है सर। कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल देना है, वो एग्जाम्पल। सर मैंने ऐसा किया लेकिन हुआ नहीं, मैं साथ साथ टाइप किया और कुछ हुआ नहीं उससे। सर उसमें कोई आप डेटा दो, डेटा का पैटर्न होना चाहिए। ये फाइल जो मैं आप काम कर रहा हूँ, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इस फाइल के ऊपर काम करना और अपनी कोई काम करना। अगर कहीं पे दिक्कत आएगी, आई एम गोइंग टू शेयर माई ईमेल आईडी, माई फोन नंबर, माई व्हाट्सएप नंबर टू ऑल ऑफ यू। और मेरा चैनल है, आप उसके थ्रू भी आप जो है मेरा सारा कॉन्टेक्ट वगैरह ले सकते हो। मेरी काफी नहीं सर, वर्क कर रहा है, मैंने ट्राई किया था सर। ये कमांड कहाँ पर है सर? ये सर यहाँ पे देखिए डेटा के अंदर जाएंगे ना सर, यहाँ पे देखिए इसके डेटा टूल्स के अंदर ये टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में है सर। यहाँ पे देखिए इसमें, लेकिन सर ये 2013 वर्जन में है सर, 2013 और उसके बाद वाले वर्जन में। अगर आपका वर्जन पुराना है तो आप उसको जितने मर्जी लेंस लगा के ढूंढते रहना जी, आप बैटरी लगा लगा के ढूंढ लेना, लेकिन वो नहीं मिलेगी सर। ठीक है, उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा नया लाइसेंस। सर इसमें ओरिजिनल डेटा को चेंज करते हैं तो फिर फ्लैश फिल काम नहीं करेगा ना? नहीं सर, ये आपका वन टाइम जो है क्लीनिंग के लिए है डेटा की। जैसे आपके पास कोई डेटा आया, कोई बैंक की कोई फाइल आई, कुछ आपने वन टाइम काम करना है, तो बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, ये इजीली आपको 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट। सर प्लीज रिपीट करना, डेटा में कौन सा हेडर पे है? डेटा में कौन सा हेडर है इसका? क्या नेम है इसका? कंट्रोल का फ्लैश फिल नाम है सर। फ्लैश फिल जी, फ्लैश फिल। ओके सर, फ्लैश फिल चैट में भी आ रहा है, आप चैट में पढ़ते जाओ भाई। ये जो वीडियो है सर, इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मेरे हिसाब से राजेश जी दे देंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख करके दोबारा से आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो सर। ठीक है सर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम आगे करते हैं। एक मैं आपको और दिखाता हूं, स्पेल चेक। अगर हमारे को कई बार होता है कि यार स्पेलिंग चेक करनी है, मेरे को कोई डेटा भेजना है, कोई बैलेंस शीट बनानी है, कहीं पे मेरे को कोई चीज की, लेकिन हमारे को लगता है यार एक्सेल के अंदर तो स्पेलिंग चेक होती ही नहीं है, एक्सेल में कैसे करेंगे? वर्ड में तो सुना था, लेकिन ऐसा नहीं है जी। ये एक्सेल जो है ये भी वर्ड का भाई बहन है, ये भी आपका जो है उसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये आपने देखना है, ये भी सब चीजें आपके लिए कर सकता है। आपने अब देखिए इसके अंदर जो है नोटबुक की स्पेल गलत है, कंप्यूटर की गलत है, टेलीफोन की गलत है। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी स्पेलिंग ठीक हो जाए तो आप क्या करोगे सर, इसके अंदर देखिए ऊपर जो नजर आ रहा है आपका, तो यहाँ पे आपको देख रही है रिव्यू। रिव्यू में जब गए कि हमने अपना जो काम कर लिया और काम करने के बाद हम रिव्यू करना चाह रहे हैं, बिफोर सेंडिंग, बिफोर फाइनलाइजेशन, हम चाहते हैं कि मेरा जो डेटा है वो ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, जिस डेटा को सिलेक्ट करेंगे उसको चेकिंग करेगा। अगर कहीं नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेगा अपने आप से, मतलब उसको चेक करेगा। अब यहाँ पे जाकर के रिव्यू में जाइए और ये देखिए स्पेलिंग का बटन दबा दीजिए। शॉर्टकट क्या है जी, जैसे आप कर्सर को ले जाके यहाँ पे रोकते हैं, देखिए रोकते हैं ना कर्सर को, इसको आधा सेकंड के लिए, तो यहाँ पे आपको ये शॉर्टकट नजर आ जाता है। ये स्पेलिंग का शॉर्टकट F7 है, तो आपको यहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल F7 दबा देंगे तो भी हो जाएगा। अभी आप इसको क्लिक किया आपने स्पेलिंग पे, तो ये देखिए आपके सामने एक विंडो नजर आ गई और ये आपको दे रहा है कि नोट इन डिक्शनरी, की डिक्शनरी में ये नोटबुक नाम से कुछ नहीं है। अब ये सजेशन दे रहा है कि देयर इज ए सजेशन कि नोटबुक की जगह यहाँ पे NOTE नोटबुक, नोटबुक्स भी बोल रहा है, ये नॉन बुक भी बोल रहा है, नोटबुक भी बोल रहा है। तो आपको जो ठीक लगे, अगर सही लगता है तो आप इसको बोल दीजिए चेंज, तो ये देखिए चेंज हो गया। फिर ये अगले पे चला गया, इसने बोल दिया कंप्यूटर, राइट। अब अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप चेंज ऑल भी बोल सकते हो। चेंज ऑल का मतलब सबको चेंज कर देगा, जो भी इसको ठीक लग रहा है सबको। तो यहाँ पे आपने इसको कंप्यूटर पे गए, सिंगल सिंगल करना है तो सिंगल सिंगल कर दीजिए। टेलीफोन, तो देखिए टेलीफोन पे आ गया। इसने कंसल्टिंग, कंसल्टिंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी तो इसने बोल दिया चेंज।
ये देखिए इसने बोल दिया डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग, हमने बिगिनिंग से स्टार्ट की थी तो ये हो गया और ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आप अपने डेटा की क्लीनिंग कर सकते हो। क्या होता है सर, हम प्रोफेशनल आदमी हैं, अगर हमारी कोई छोटी सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो ना तो वो काफी ज्यादा इंप्रेशन खराब कर देती है। कोई बड़ी कंपनी में डेटा जा रहा है, कोई बैलेंस शीट जा रही है, कहीं पे कोई हमने कोई लेटर दिया और जैसे ही उसको दिया उसमें अगर कोई छोटी मिस्टेक है तो अरे यार काहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार, उसको तो जो है ना इसकी देख ये छोटी छोटी मिस्टेक है। तो ये अच्छा जो है ना, तो इसलिए हमारे को क्या है, जब भी हम मेल कोई भेजते हैं, आजकल तो गूगल के अंदर जो मेल डालते हैं वो बड़ा स्मार्ट हो गया है, हमारे को कलर कर देता है, बट एक्सेल के अंदर हमारे को लगता है यार स्पेलिंग की मिस्टेक तो हो जाती है कई बार। तो आप इसके लिए इस रिव्यू का सहारा लीजिए और यहाँ पे जाकर के आप इसको अपने क्लीन कीजिए जी। तो ये भी एक आपका बड़ा अच्छा टूल है डेटा क्लीनिंग के लिए, राइट सर। अब उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जी, रिमूव डुप्लीकेट्स। कि कई बार हमारे पास डेटा जो होता है सर, ये डेटा है हमारे पास जैसे, अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार कई चीजें रिपीट हो रही है, जैसे आपके पास इनवॉइस नंबर आ रखे हैं काफी, या कई बार आपके कस्टमर हैं, एक ही कस्टमर से आपके 4-4 बार डीलिंग हो रही है। अब आप चाह रहे हो कि सर कि ये जो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे साल में कितने कस्टमर से मेरी डीलिंग हुई है, तो यूनिक कस्टमर चाहिए मेरे को, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, या मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, मेरे पास जो आइटम बचे हुए हैं, स्टॉक जो बचा हुआ है उसके, तो उसके वो यूनिक आइटम में कितने आइटम्स में डील करता हूँ। लेकिन आपका जो सेल्स रजिस्टर है या परचेज रजिस्टर है उसमें हो सकता है वो चीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम कैसे जो है जल्दी से उसको कर पाए। तो उसके लिए सर एक बहुत ही बढ़िया इसके अंदर फीचर है, अगेन ये डेटा के अंदर, ये जितनी भी चीजें मैं आपको ज्यादातर बता रहा हूँ सर, ये डेटा के अंदर ही आपकी ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि डेटा क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें ही उससे ही आपकी ये सारी चीजें बढ़िया से बन जाएंगी सर। अब इसके अंदर सर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जब डेटा में जाएंगे तो अगर आपको सिंगल कॉलम पे अगर करना है कि आपको देखना है कि मेरे कितने प्रोडक्ट हैं जो कि मेरे डील करता हूँ, तो इस प्रोडक्ट को कॉलम को कॉपी कीजिए और एक बगल में या दूसरी सीट पे ले जाके इसको पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जाकर के डेटा में और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक नजर आएगा आपको रिमूव डुप्लीकेट्स, जहाँ पे फ्लैश फिल था उसी के बिल्कुल नीचे उसकी बगल में आपको नजर आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे आपने इसको क्लिक किया रिमूव डुप्लीकेट सर, और यहाँ पे जाकर के आपने बोला ये सिलेक्ट हो रखा है, ओके बोला इसको, तो इसने क्या बोला 654 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, मतलब उसने डिलीट भी कर दिए, एंड 13 यूनिक वैल्यूज रिमेन, तो ये आपकी बच गई है सर। तो ये जो है आपकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बन गई। तो इस टाइप से आपके पास कोई भी डेटा है उसको अगर आपने यूनिक बनाना है, डुप्लीकेट्स को हटाना है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं सर। तो ये बहुत, और इसमें ऐसा नहीं कि आप सिंगल कॉलम पे ही करना चाहोगे, कल को अगर आपको 2 कॉलम्स के बेस पे करना है, 3 कॉलम्स के बेस पे करना है, तब भी आप इसको कर सकते हो सर। कि इसके अंदर अगर आपका कल को रीजन भी है, कोई सेल डेट भी है, कुछ और भी है, तो जैसे मर्जी आप इसको, कि अगर आपको ये देखना हो कि 2 प्रोडक्ट है मेरे, कि सेल्समैन भी और प्रोडक्ट भी, इन दोनों को मिलाकर के मेरे को डुप्लीकेट हटाना है, तो यहाँ पे अगेन आप जाएंगे और ये इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स पे, और जैसे ओके करेंगे तो इसने देखिए अब की बार 91 यूनिक वैल्यूज रख दी। तो अब की बार क्या है सर, इसके अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो यूनिक होगा। अब ये गुड मैन हो सकता है दूसरी बार भी आ जाए, गुड मैन जो है फ्रूट्स के साथ भी आ गया, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी आ गया, लेकिन गुड मैन और कोल्ड ड्रिंक मिलकर के दोबारा डबल नहीं होंगे। तो ये देखिए लाइन जो बनी है 91 लाइन बनी है, जबकि मेरा जो पूरा डेटा है वो कितना है 600 लाइन्स है, 700 लाइन्स। तो इसके थ्रू क्या है सर, मैं डेटा को जो है रिमूव डुप्लीकेट्स करके बहुत जल्दी से डेटा को क्लीनिंग कर सकता हूँ। फिर उसके बाद कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई और आगे मेरे को एक्शन लेना है, वो एक्शन में ले सकता हूँ। तो ये आपका रिमूव डुप्लीकेट्स भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है जी। इसके अंदर एक देखिए बहुत बढ़िया एक प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा, वैल्यू जो है लाइक नंबर्स। अब इसके अंदर देखिए आपको जो देखने में जो लग रहा है, यहाँ पे देखिए डेटा, ये जो डेटा है इसको मैं अलाइन भी ऐसे कर देता हूँ, इसको राइट अलाइन कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो ये डेटा है आपका उसको ये, अब आपको लग रहा है कि ये डेटा भी दोनों सेम है डेटा तो मेरे, राइट। अब अगर मैं इसका टोटल करता हूँ जी, अगर मैंने इसको अंदर सम किया इक्वल टू सम, और यहाँ पे जाकर के मैंने इन सबको सम कर दिया, तो देखिए इसका टोटल कितना दे रहा है, ये कितना दिया जी, केवल 1 2 3 4 5, मतलब इसने जो सम दिया केवल 1 2 3 4 5 सम दिया। लेकिन आप कहो यार इसके अंदर तो टोटल
ठीक आना चाहिए। कई बार ऐसी ऐसी हम बड़ी मिस्टेक कर देते हैं सर। अब ये मिस्टेक से क्या है, हमारे को पता ही नहीं चलता कि बीच में कोई ऐसा डाटा था जो कि वो डाटा जो है एक्चुअली नंबर था ही नहीं, एक्सेल उसको नंबर मान ही नहीं रहा, राइट सर। तो उसको कैसे हम जो है ढूंढे कि ये नंबर है या नहीं है, कैसे हमारे को पता लगे। और अगर पहले चलो हमारे को ये भी पता लग जाए कि इसमें मिस्टेक है, तो इसको हम ठीक कैसे करें। अब ये तो मेरे पास 5 ही नंबर है सर, लेकिन मेरे पास जो डाटा है वो 50,000 लाइनें हैं, 20,000 लाइनें हैं, 1,00,000 लाइनें हैं। अब उसमें से 2 जगह पे मेरी मिस्टेक है, मैं उस 2 मिस्टेक को कहाँ से तो पहली बात ढूंढूं, और ढूंढने के बाद फिर मैं उसको ठीक कैसे करूं। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, ये एक्सेल को अगर आप ढंग से यूज करेंगे सर, और इसको बिल्कुल एकदम एक्सेल से आप जो है ना, क्योंकि हमारा ये जो है बोलते हैं ना ब्रेड बटर है, ये समझ लीजिए एक्सेल। अगर इसमें आपकी मास्टरी हो गई, अगर आपने अपने जो कलीग है, अपना कंपटीटर है, उससे अगर आपने 10% 5% भी और आपका एडवांटेज हो गया, तो आपकी जो है ना देखोगे, अरे कितना टाइम बचना स्टार्ट हो गया आपका। क्योंकि सीए तो उसने भी की है, सीए आपने भी की है, बट फर्क क्या है कि आप टेक्नोलॉजी को कितना यूज कर रहे हो, कैसे आप अपने डे टू डे वर्किंग में यूज कर रहे हो। अपने स्टाफ को, अपने जो कलीग्स हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा जो है कहिए कि हाँ जी एक्सेल के अंदर आप सीखिए। आजकल तो इतना इजी हो गया है सर। और एक मेरा जो यूट्यूब चैनल है सर, चैंप एक्सेल के नाम से, वहां पे मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अपनी देसी लैंग्वेज में, और आप आराम से उसको सीख सकते हो कोई भी चीज। और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आते हैं आपको, कभी भी आप पूछ सकते हो उसके लिए। मेरा एक यूट्यूब का जो है मैंने ग्रुप्स भी बना रखे हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहो तो इसके बाद में मेरा जो नंबर दूंगा मैं, उस पर बस सिंपल एक मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ लूंगा, ताकि मेरे जो अपडेट्स होंगे, अब जैसे मेरी एक परसों एक सेमिनार होने वाली है परसों पीवेट टेबल के ऊपर, और वो पीवेट टेबल को मतलब मास्टर इन पीवेट टेबल, वो नॉर्मल पीवेट टेबल नहीं होगी जी, वो 2 घंटे के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पीवेट टेबल के ऊपर भाई होने वाली है, जिसको आप देख करके आपने सोचा नहीं होगा कि हम 10 साल से 5 साल से पीवेट टेबल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। अब इसकी बात करते हैं सर, इस केस को, इसको कैसे हम ठीक करें। तो इसके लिए देखिए, एक मेरे पास है कोई डाटा, ये देखिए। अभी इस डाटा के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास जो है नंबर भी है, मेरे पास एरर्स भी हैं, कहीं पे मेरे पास देखिए। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे, आपको देखने में ये देखिए 414 है, और इसके नीचे जो देखने में क्या लग रहा है, ये आपको कहोगे 707 नंबर है जी, 707, बट एक्चुअल में ये 707 नहीं है जी, ये जो है ना 707 है। O7 का मतलब ये टेक्स्ट है जी। अगर इसको दोनों को सम करोगे ना जी, इसको 414 और प्लस ये करोगे दोनों को, तो देखिए इसके अंदर ये आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि इसको ये जो है समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसको सम कर दोगे तो ये देखिए, इन दोनों को सम करोगे तो केवल ये 414 दिखा रहा है, जबकि टोटल में आपको ये लेके जा रहा है यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोनों को टोटल कर रहा है, लेकिन 414 आ रहा है। तो अब इसको जैसे कैसे हम ढूंढ सकते हैं कि इसमें कहाँ पे टेक्स्ट है, कहाँ पे नंबर है, कहाँ पे एरर है। तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, अगेन आप होम पे जाइए, और इसमें जाकर के अगेन उसी बटन पे जाइए, फाइंड एंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल में। अब तो पहले तो हमने ब्लैंक्स को सिलेक्ट किया था, अब की बार सर इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर भी हम 1 घंटे की ट्रेनिंग कर सकते हैं खाली गो टू स्पेशल पे। तो इसमें देखिए, इसके अंदर नजर आ रहा है आपको कि मेरे जो नंबर्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स नंबर हैं, और उसके अंदर से मेरे को क्या चाहिए, केवल नंबर्स को देखना है, केवल नंबर्स को। तो यहाँ पे मैंने इसको नंबर्स को सिलेक्ट किया और इसको ओके बोल दिया, तो केवल इसने नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, और इसको जाकर के मैंने कलर दे दिया जिसको, कि मेरे जो नंबर्स हैं केवल वो कलर हो गए। अब की बार मैंने इसको बोला कि फिर से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और फिर से मैंने F5 किया। अब की बार मैंने इसको बोल दिया जी मेरे को स्पेशल पे केवल अब की बार तो टेक्स्ट चाहिए, मेरे को नंबर भी नहीं चाहिए, एरर भी नहीं चाहिए। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो अब की बार इसने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, और मैंने इसको जाकर के टेक्स्ट पे कलर दे दिया कि मेरा जो कलर है टेक्स्ट का वो ये कलर है। तो ये सारे के सारे मेरी टेक्स्ट हैं, देखने में नंबर लग रहा है, ये देखिए 146, बट ये I46 है, ये 707 है, ये देखिए 11 है, ये 1516 है। अब रह गई एरर। एरर को कैसे सिलेक्ट करें कि कहाँ पे एरर पड़ी हुई है मेरी। कई बार होता है मेरा पूरा डाटा है जी, उसमें एक छोटी सी एरर आ गई, पता लगा मेरी पूरी बैलेंस शीट में कहीं पे एरर आ गई, क्योंकि वो एरर के जोड़ने में एरर आ गई, फिर उसको जब डिवाइड किया फिर एरर आ गई। अब वो एरर को ढूंढते ढूंढते हमारे को घंटा लग गया। लेकिन हम इसके थ्रू जा सकते हैं कि पूरी सीट पे हमने सिलेक्ट किया, जहां जहां पे एरर है उसको सिलेक्ट करना है। स्पेशल पे गए, और स्पेशल पे जाके सर मैंने इस पे गया, और इसमें जाकर के मैंने एरर्स को सिलेक्ट कर लिया बस, और जाकर के इसको जैसे मैंने ओके बोला तो इसने केवल एरर को सिलेक्ट कर लिया। और अब की बार जाकर के मैंने
इसको कलर कर दिया। तो ये देखिए ऐसे मेरे को मैं डाटा को अलग अलग बिन कर सकता हूँ, मैं ढूंढ सकता हूँ कि कहाँ पे मेरे डाटा की प्रॉब्लम है, कहाँ पे मेरे को एक्शन लेना है। अभी एरर को मेरे को डिलीट करना है, सपोज ये सिलेक्ट है, अब मैं जाके डिलीट का बटन दबाऊंगा, देखिए डिलीट हो गई। अब इनकी जगह मेरे को 0 डालना है, कंट्रोल 0 कर दिया, 0 हो गई सर। इतना इजीली हो गया। अब मेरा डाटा में अगर मैं टोटल करूंगा और करूंगा तो वो मेरी चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप से। तो इस टाइप की चीजें अब इसी मेथड को यूज करके सपोज करो आपको पता लग गया कि आपका डाटा के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है नंबर्स के अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम है अब इसको दूर करना है आपको कि मेरा जो ये टोटल है ये ठीक हो जाए जी। कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ यहाँ पे? तो इसके लिए सर आप क्या कर सकते हो, इसको ये ठीक हो जाए तो आप इसके बगल में जब इस टाइप की प्रॉब्लम है क्या कर सकते हो, इक्वल टू ये किया और प्लस जाकर के 0 डाल दो इसमें, या इसको जाकर के कर दो मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट होगा या जो नंबर जो टेक्स्ट जैसे दिख रहा है या नंबर होगा तो नंबर भी ठीक कर देगा, नंबर तो ठीक है ही, और टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, एक ही फॉर्मूले में काम हो जाएगा। तो इसको आपने पकड़ के और जैसे आपने इसको नीचे खींचा देखिए तो ये सारे नंबर आपके ठीक हो गए। अब की बार मैं अगर इसको सम का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे तो ये देखिए ये सारे के सारा मेरा पूरा का पूरा सम लगा दिया, इसने टोटल लगा दिया सारे का सारा। तो ऐसे करके आप डेटा की सर क्लीनिंग कर सकते हो। कैसे, कितना ही बड़े से बड़ा डेटा है, कैसे आप एक सिंपल आपने +0 किया या मल्टीप्लाइड बाई 1 किया और आपका डेटा जो है पूरा का पूरा वो क्लीन हो गया। ट्रिम करने से जैसे आपके वो एक्स्ट्रा स्पेस हट गए, कई बार वीलुकअप लगाते हैं, मेरे पास लोग आते हैं सर कल तो मेरा वीलुकअप ठीक काम कर रहा था, आज काम नहीं कर रहा, ये डाटा भी ठीक है जी, मैच भी कर रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो पता लगा एक छोटा सा स्पेस पड़ा हुआ है। तो आप पहले से ही अपने डाटा में जहाँ पे गलती है उसको पहले से ही ट्रिम लगा लो, ट्रिमिंग कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। एक चीज और कर सकते हैं हम। क्या जी? जी सर बोलिए। चलिए जी आगे, और मैं आपको जो है थोड़ा सा इसमें और फर्दर मैं बताता हूँ आपको। सर फ्लैश वाली कमांड एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे? कौन सी सर? फ्लैश वाली। अच्छा फ्लैश फिल वाली सर। ये फ्लैश फिल सर वैसे देखिए हम कुछ नई चीज सीखें, क्योंकि अभी हमारे पास जो है ना टाइम भी थोड़ा सा कम है। आपकी वीडियो राजेश जी आप इसको सबको आप दे पाएंगे क्या वीडियो रिकॉर्डिंग? दे देंगे सर, दे देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रिकॉर्डिंग आप दे देंगे। और इसके अलावा सर एक चीज मैं और आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा जो है ना यहाँ पे अभी मैंने जो है सेमिनार जो की थी इसके लिए, जो यहाँ पे इनके लिए की थी मैंने NIRC के लिए, तो उस सेमिनार के अंदर 2 घंटे 2.5 घंटे की सेमिनार थी। ये चैनल के ऊपर मेरी पड़ी हुई है जी वहां पे, और वहां पे जो है आप उसके अंदर देखोगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया आपको वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी। तो आप उसको भी देखिए, उसके साथ फाइलें भी अटैच हैं। और ये अच्छा एक मैं जो है ना योगा से अटैच हूँ, लोगों को पता होगा ज्यादातर लोगों को, तो आजकल जो है इस लॉकडाउन डेज में लाइव योगा क्लासेज मैं और मेरी वाइफ, कोई उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है, कोई इसमें नहीं, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योगा की क्लासें भी होती हैं। तो आप अगर कोई जुड़ना चाहे तो मेरे चैम्प एक्सेल से लाइव क्लासें होती हैं, कम से कम 100 लोग हमारे से जुड़ते हैं, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हो। तो ये देखिए ये लाइव एक्सेल टूल्स एंड ट्रिक्स जो है ये वेबिनार की जो है आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया नई नई चीजें सिखा रखी हैं। आपके यहाँ पे तो कुछ है, ये काफी अच्छी इसके अंदर जो है चीजें आपको नजर आएंगी सर। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं सर। एक कुछ चीजें और रहती है सर, मैं एक स्पेसिफिकली वन डाउट था जी बोलिए सर। which I'm facing from a few months. Whenever we save the Excel after doing the whatever we want to do, and once we reopen it, तो उसमें सारे जो भी डाटा फाइल्स होती हैं वो डेट फॉर्मेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि एक्चुअली जनरल में होती हैं या फिर नंबर में होती हैं, वो ऑटोमेटिकली सब डेट में हो जाती हैं। तो उसके लिए कुछ हम स्पेसिफिकली कर सकते हैं सर? सर जो डेट में कन्वर्ट हो जाती है ना, इसका मतलब मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ है। ये जो फाइलें होती हैं वो क्या होगा, वो जो फाइल है ना ये आपकी, वो कोई पुरानी फाइल है और उसमें काफी ज्यादा डेटा, उसमें कई चीजें छोटी छोटी करप्ट हो चुकी हैं उसमें डेटा के अंदर। तो उसका जो तरीका है वो आपकी फाइल जो है जनरली ऐसे ठीक नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए तो बेस्ट तरीका मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, उसमें आपकी अगर 2-3-4 सीट हैं, उन सीट्स को आप उठा करके और अलग से एक नई फाइल के अंदर ले जा करके और उसको एज ए आप वही पेस्ट वैल्यू है या उसको आप कर लीजिए, ताकि क्योंकि उस फाइल के अंदर आपका एक जैसे होता है ना करप्ट हो चुकी है वो फाइल आपकी। जी 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 जी। तो उसके अंदर अगर आप बार बार कोशिश करोगे, एक बार आपने मेहनत करके ठीक कर ली, फिर उसके बाद दूसरी सीट इंसर्ट करोगे या उसी डाटा में, फिर वो करप्ट हो जाएगी।
बट अगर आप वो फाइल मेरे साथ अगर आप शेयर करोगे तो मे बी मेरे पास कुछ क्या है भाई टूल्स हैं, कुछ मेरे पास यूटिलिटीज है, तो हो सकता है मैं उस ओरिजिनल फाइल को ही मैं ठीक करके और मैं आपको दे दूंगा, तो मे बी आपकी वो मिस्टेक दोबारा से नहीं आएगी। तो 99% 95% चांसेस है कि उसके अंदर जो ये यूटिलिटीज है या कुछ लगा करके मैं आपकी वो ठीक करके, मेरे लिए वो काम 1 मिनट 2 मिनट का ही होगा और आपका काम अगर हो जाएगा तो अगर आप देख सकते हैं सर, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। एक सर ये देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं कि मेरे पास जैसे कई बार क्या होता है कि ये मेरे पास प्रॉफिट है, ये मेरे पास कोई रेवेन्यू है, या मेरी एक भाई कॉस्ट है, जैसे यहाँ पे ये रेवेन्यू है, ये मार्जिन है जैसे। अब इसके अंदर जो है मेरे को ये देखना है कि कितना ये मार्जिन परसेंटेज लगाया, तो मैंने क्या इसमें कॉस्टिंग कितनी परसेंटेज है, तो B2 डिवाइडेड बाय मैंने 684 कर दिया इसको। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 15% मेरी कॉस्ट है, उसके अगेंस्ट में जो रेवेन्यू के अगेंस्ट में 15%, लेकिन जैसे आपने इसको पकड़ करके नीचे खींचा इसको फॉर्मूले को, तो यहाँ पे देखिए ये एरर आ जाती है जी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कई बार आप फिल्टर लगाते हो, कोई VLOOKUP लगाते हो, डेटा है नहीं और वहां पे एरर आ गई। अब वो लोग क्या करते हैं, उनको एक ही तरीका आता है, वो फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ पे उस एरर को खत्म करने के लिए, कोई और फर्दर करने के लिए इसको जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर के इसको बस 0 कर देंगे या डिलीट कर देंगे। बस उनका तो काम हो गया कि अच्छा जी हमने तो ये डाटा ठीक कर दिया और ये काम हो गया। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो जी आप। अब अगर गलती से जैसे आपने ये ठीक कर दिया और यहाँ पे अगर कोई डाटा जो 38 रुपए पहले तो आपका ये कॉस्टिंग हो गई, लेकिन अब बाद में बिक गई चीज और ये गलती से आपको पता लगा जी ये रेवेन्यू था इसका 38 का, हमने 50 रुपए का ये सेल में हमने की थी। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, ये आपका मार्जिन फिर से हट गया, मतलब हट गया ना, क्योंकि आपने वो डिलीट कर दिया। यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, अब इसको फिर दोबारा फॉर्मूला लगाओ। अब ऐसे ये तो सर 4 लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, अगर यही लाइनें अगर सर आपकी हजारों में हो तो ये प्रॉब्लम क्या है, ह्यूज डाटा की प्रॉब्लम है। कहीं पे अगर 2-4 चीजें हैं तो वो तो आप मैनुअल जो है ना कॉपी में भी कर सकते हो, कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। बट आज की डेट में हमारा जो डेटा बेस है, हमारा जो बिजनेस है, वो तो इतना हो गया जी, 1000 भी लाख भी कम पड़ती हैं, आपकी तो रोज है ना मिलियंस में होती है। आज की डेट में आप देखो बड़े बड़े जो ये कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनका जो डाटा होता है एक दिन में ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हजारों में ट्रांजेक्शन होते हैं। उसका डाटा आया, हमने एनालाइज करना है जी, कैसे हम उसको काम करें, तो उसके लिए फिर जो है देखना होता है। तो इसके लिए सर क्या करना है, एक बहुत बढ़िया आपने जो फॉर्मूला जो ये लगाया, जो आपने ये किया खींचा, तो हम चाहते हैं कि ये जो एरर है कि जब डाटा हो तो ये एरर आपकी ठीक हो जाए। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है इसके अंदर। अगेन ये फॉर्मूलाज में आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए सर, इसके अंदर जाएंगे तो इसमें लॉजिकल फॉर्मूला के अंदर आपको एक इफ एरर कि जी अगर एरर हो तो क्या करे एक्सेल, उसको ये बता दो कि इफ एरर। तो उसमें आपने बोल दिया कि यहाँ पे जाके ये जो फॉर्मूला लगाया था आपने, इसी के आगे आप जाकर के इसको लपेट दीजिए जी, इसके आगे बोल दीजिए इफ एरर। यहाँ पे जाइए और आप बोलिए इफ एरर, ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब आप इसको बोलिए कि अगर एरर हो तो इसके बाद में कोमा लगा के जो आप चाहते हो वो कर दो, कि आपको 0 चाहिए या आपको ब्लैंक चाहिए तो इन्वर्टेड कोमा जो ब्लैंक डाल दीजिए तो ये ब्लैंक ले लेगा, या आप इसको बोल दो इसके आगे ये लिखा हुआ आ जाए कि यहाँ पे एरर, तो ये एरर लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो चीज आपको चाहिए वो आ जाएगा। तो आपने इसमें लिख दिया कि मेरे को 0 चाहिए जी, और आपने 0 डाल करके इस फॉर्मूले को एंटर कर दिया। अब जैसे आपने एंटर किया तो यहाँ पे 15% था तो 15 आ गया। अब इसको पकड़ करके आपने नीचे खींच दिया जी फॉर्मूले को, राइट। और इसको खींचने की भी जरूरत नहीं है, इसको आपने जाकर के डबल क्लिक कर दिया, ये प्लस का निशान से, ये देखिए यहाँ पे 0% आ गया। ब्लैंक चाहते तो ब्लैंक आ जाता। अब इसके फायदा क्या होगा सर, कि कल को आपका डाटा यहाँ पे 38 की जगह सपोज करो यहाँ पे 50 रुपीज आ गया, यहाँ पे अगर डाटा आ गया तो ये परसेंटेज आ गई यहाँ पे, और अगर एरर है तो वहां पे 0% आ गया। तो इससे क्या हो गया, आपको अगर कुछ निकालना है, कोई फॉर्मूला निकालना है, कुछ करना है, तो आपका कोई भी चीज आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, कि आपको इसके बेस पे कोई कैलकुलेशन करनी है, ये बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन चलेगी सर। तो आई होप कि जो हमने एक, मैं जल्दी से इसको, क्योंकि टाइम आपका जो है 5:30 बजे तक का आई बिलीव आप लोगों का टाइम है, चीजें तो बहुत ज्यादा है जी करने के लिए, बट समय को देखते हुए भाई आप लोगों का दूसरा भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो सकता है, कोई दूसरी वेबिनार भी आपने अटेंड करनी है। तो मैं एक बार जल्दी से इसको रिकैप करता हूँ सर। 5-7 मिनट में इसको समअप करके फिर क्वेश्चन आंसर ले लेना सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा सर, बिल्कुल। तो ये जो है, ये हमने जो बात की, सबसे पहले हमने ट्रिमिंग आपको बताया कि ट्रिमिंग के थ्रू, प्रॉपर के थ्रू कैसे आप डाटा को जो है क्लीन कर सकते हो जी यहाँ पे। एक मैंने फिर आपको जो है फ्लैश फिल बताया कि कैसे फ्लैश फिल के थ्रू जो है
ये तो बहुत ही गजब की चीज है जी। इसके लिए लेकिन आपको वर्जन जो है लेटेस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कैसे। अच्छा, इसके अंदर ऐसा नहीं कि केवल ये चीज है, इसके थ्रू अगर सपोज करो आपने जीएसटी नंबर है जैसे सपोज आपका, और उसको जीएसटी में से पैन निकालना है आपको, तो वो भी आप इसमें से निकाल सकते हो, 1 सेकंड में निकाल सकते हो। हजारों नाम है आपके सपोज करो, तो आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको देखो दिखाता हूँ इसके अंदर कि कैसे ये आपके लिए निकाल सकता है। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें ये आपको कर सकता है। ये देखिए मेरे पास जीएसटी नंबर पड़े हुए हैं। अब आपको इसमें से चाहिए कि अच्छा यार मेरे को इसमें से जो है ना पहले केवल पैन नंबर निकालना है, तो आप इसमें जाकर के एक नाम दे दीजिए QBVFS और आपने दे दिया 4283P, आपने एक नाम दे दिया इसको। अब इसमें जाकर के कंट्रोल ई कर दो, कहीं भी कर दो, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही करना है, नीचे जाके आगे जाके कहीं भी जाके कंट्रोल ई कर दो। अब ये देखिए 1 सेकंड के अंदर उसने बीच में से पैन नंबर निकाल दिया। आप सोचो आपके पास फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी हो जिसको एक्सेल कम आता है वो भी कर सकता है, जिसको ज्यादा आता है वो भी कर सकता है। ये तो जाकर के बच्चे भी एक बार बता दिया, वो भी खुशी खुशी कर सकते हैं, राइट। अब आपको इसमें से केवल स्टेट कोड निकालना है पहले स्टार्टिंग का, कि आपका जो स्टेट कोड आपका अलग से हो जाए। तो यहाँ पे आप जाइए और इसमें जाकर के स्टेट कोड डाल दीजिए इसके अंदर, कि आपने 02 दिया और कंट्रोल ई कर दिया। ये देखिए इसमें से स्टेट कोड आपका अलग कर दिया इसने, राइट। तो जैसे मर्जी आप इसको चाहिए वो आपको हो सकता है। इसके अंदर जैसे 4th कैरेक्टर होता है हमारा, हमारे को बताता है कि ये इंडिविजुअल है कि आपका एओपी है क्या है, वो सारी की सारी चीज आपको। तो इसमें 4th कैरेक्टर आप देना चाहोगे तो 4th कैरेक्टर निकाल देगा। थोड़ा थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे सर, बहुत बढ़िया चीज से ये आप कर सकते हो। फिर मैंने कम्प्लेक्स एग्जाम्पल आपको बताया कि ये कम्प्लेक्सिटी में कैसे कर सकता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, आप अपने आप करना, ये फाइल में आपको दे दूंगा, मैं राजेश जी को भेज दूंगा, तो राजेश जी आपको शेयर कर लेंगे। मैं कर दूंगा सर, भेज दूंगा सबको। प्रैक्टिस करोगे तो क्या है, लेकिन वो प्रैक्टिस सर जितनी जल्दी करेंगे ना सर आप, उतना जल्दी आपका बढ़िया रहेगा। अगर आपने ये सोचा कि चलो देख तो लिया, कल कर लेंगे, अच्छा ठीक है यार ये तो कोई नहीं, तो समझो कि फिर आपका 2-4 दिन में ये बस आपका वॉश आउट होने वाला है। लेकिन आपने उसको कर लिया तो फिर आपको पक्का हो जाएगा जी, जितनी जल्दी करोगे। तो अपने स्टाफ को भी जाकर के बताइए, देखिए, करिए। फिर मैंने आपको दिखाया कि भाई डाटा है जैसे इसके अंदर से कैसे हम इसको अलग से कर सकते हैं इसमें से। ये 1 मिनट में इस फाइल पे था, फ्लैश फिल कम्प्लेक्स है। फिल ब्लैंक्स मैंने दिखाया कि कैसे हमने ब्लैंक्स को जाकर के 0 से फिल किया था मैंने फिल डाउन करके दिखाया कैसे आपको यहाँ पे खाली चीज पड़ी हुई थी, तो कैसे सर हम इसके अंदर कंट्रोल डाउन कर सकते हैं। लुकअप डाटा इसके अंदर मेरे को जैसे एरर थी वो मैंने ठीक करके दिखाई। गो टू के अंदर मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे मेरी एरर है, कैसे मेरे टेक्स्ट है उसको अलग कर सकता हूँ। स्पेलिंग चेक करके मैंने आपको दिखाई सर, कैसे मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स करके दिखाया आपके लिए। वैल्यू लाइक नंबर्स है उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। इसी तरह डेट की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, वो डेट की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो सकती है सर एक्सेल के थ्रू, जो है काफी अच्छा। एक जो है ना, मैं छोटी छोटी वीडियोस डाल रखी है, जैसे फाइनेंस आपका, हमारा कैलेंडर ईयर नहीं चलता, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चलता है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट बने वो अप्रैल टू मार्च बनती है, लेकिन जैन टू दिसंबर के चक्कर में कई बार एक्सेल समझ नहीं पाता। तो मैंने एक फॉर्मूला डाल रखा है उसमें, वो फाइल दे रखी है वहां पे, आप जाओगे चैनल पे और वहां से देखोगे, इतना इजी सा छोटा सा फॉर्मूला है, आप उससे 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट में, आधा मिनट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपनी डेट्स को फाइनेंशियल ईयर के बेस पे, क्वार्टर के बेस पे, कि अप्रैल से लेके जून तक फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा, फर्स्ट हाफ ईयर हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजें सर आप कर सकते हो। बाकी मेरी और भी वेबिनार जो है हो रही है सर। कल भी एक वेबिनार जो है, जो सीसी मेंबर है जो संजीव जी, वो रखने वाले हैं कल। तो उसके अंदर मेरे को जो है कि कैसे मैं डेटा भाई एनालिसिस करना है मेरे को, तो उसके भाई एक्सेल के जो टूल्स को यूज करके, तो उसको हम जो है भाई वहां पे डिस्कस करेंगे। टुमारो कल 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक मेरी वो वेबिनार होने वाली है जी। इसी टाइप से जो है परसों मैंने बताया पिवट टेबल की मेरी जो है वो मेरी खुद की जो है वो स्पॉन्सर मतलब होनी है, तो उसके अंदर पिवट टेबल के ऊपर काफी कुछ हमने डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये मेरा जो है एक आपको मैं नंबर भी अपना शेयर कर लेता हूँ, आप इसको भाई नोट कर लीजिए अपना। और इसके जो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा यूट्यूब चैनल भी, चैंप एक्सेल इज माय ब्रांड नेम, चैंपियन से चैंप हो गया, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक्सेल हो गया। ये आप नंबर नोट कर लीजिए 9810315945। बाकी जो आपको यूटिलिटी दी गई है उसके अंदर भी मेरा जो है
नंबर है और उसमें कुछ आपको लिंक भी दे रखे हैं जिसके थ्रू आप जो है कुछ और चीजें सीख सकते हैं सर। तो आई होप कि मैंने अपने तरफ से जो भी आपको बताने की कोशिश की। तो इन केस अगर आप नेक्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट जो भी आपका टाइम है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ ले। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन समय नहीं है तो आप मेरे से कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो, फोन के थ्रू या मेल के थ्रू। आई विल बी हैप्पी टू गिव आंसर, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन के थ्रू ही मैंने ये चीजें सीखी हैं सर। जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं लोगों के सोल्व करता हूँ उतना ज्यादा ही मेरी लर्निंग होती है सर। तो आप लोग उसके लिए जो है मेरे को ये लर्निंग कराने में बहुत मेरे लिए जो है हेल्पफुल होते हो सर। तो ओके सर, थैंक यू। और राजेश जी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी जो आपकी क्रोलबाग की जो टीम है, इतने मैंने राजेश जी को तो हमेशा ये देखा है जी, इतने प्रोग्राम करवाते हैं बिल्कुल जो है बिना किसी उसके कि चलो जी कहीं कोई चार्जेस नहीं है जी, कहीं कोई नहीं है। डेली इनका इतना मन रहता है और हमेशा आकर के कोई ना कोई नई चीज करवाने की सोचती है कि मैं नए स्पीकर को लेके आऊं, मैं अपने मेंबर्स को अपने थैंक यू सर उसके हैं कैसे मैं उनको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मैं भाई बढ़िया से बढ़िया चीजें दूं। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू राजेश जी और उनको भाई विश करता हूं कि गॉड ब्लेस हिम, कि ज्यादा से ज्यादा वो और ज्यादा जो है जो अपनी फ्रेटर्निटी के लिए इतना बढ़िया से जो काम कर रहे हैं ये, तो उसको और ज्यादा आगे इसी प्रकार बढ़ाते रहे सर। थैंक यू सर। नाउ एनीबॉडी कैन आस्क द क्वेश्चन। सर सर हम अपने ऑफिस में नॉर्मली इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं फीफो मेथड से या लिफो मेथड से। तो सर एक्सेल में इज देयर एनी वे आउट की हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फीफो मेथड या लिफो से पाए? बिल्कुल 100% हो सकता है सर। मैंने जो है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी जो प्रैक्टिस है वो आपकी इसी चीज की एक्सेल की, तो मैं इसमें मैंने फीफो के ऊपर लोगों के लिए काम किया हुआ है। आप जैसी डाटा डालोगे 1 मिनट के अंदर वो फीफो के ऊपर आपको वैल्यूएशन बना करके दे देगा। मतलब इस टाइप का आप अपना डाटा दिखाओगे तो उसको कैसे कस्टमाइज करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर मैं चीजें आपकी बना सकता हूं मैं, या बनाई हुई है मैंने। अगर वो बनी हुई चीज अगर आपको एज इट इज काम आ जाए तब तो बहुत कॉस्टिंग कम होगी। और अगर आपको पता लगा जी उसके लिए कुछ अलग से है, हमने टाइम लगाना है, तो जो भी रिजनेबल कॉस्ट होगी, बट वन टाइम कॉस्ट होगी मेरी। लेकिन उसके बाद आपका जो काम होगा वो चाहे 1 दिन का काम हो, 1 लाइन आइटम हो, चाहे 10,000 लाइन आइटम हो, वो काम आपका 1 मिनट के अंदर ही होगा। जी जी सर फ्लैश फिल में ना, जब आपने जो कंबाइंड डाटा को जब हमने सेग्रीगेट किया था अलग अलग 3 कॉलम्स में, तब आपने कॉलम्स को ना 1 बाय 1 सेलेक्ट किया था जी। तो अभी मैं थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, जैसे आई एम जस्ट लर्निंग एक्सेल, तो मैं उसमें ये पूछना चाह रही थी कि हम तीनों कॉलम्स का जो जिसमें हमें फिल करना है वो डाटा, उनको हम एक कमांड में सेलेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, उसमें जो है ना, इसमें ये जी एक एक करके ही करता है जी, ये जो है ना एक साथ नहीं करेगा। ये इसकी लिमिटेशन है। मे बी अगले वर्जन में ये ठीक हो जाए या हो जाए। अभी वो क्या करेगा, आपका जो है आपने ऊपर एक एक करके इकट्ठे डाल दिए, लेकिन जब आपको ये करना होगा तो एक एक करके ही करेगा। ये देखिए सिंगल सिंगल आपको कितनी देर लगनी है मैम? आप सोचो पहले आप उसको 1 दिन लगाते थे, और अब अगर आपने बटन दबा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? इतना तो थोड़ा बहुत काम नहीं करोगे तो फिर तो पता लगा जी कहेंगे जी इसकी जगह तो मैं कंप्यूटर को ही रख लेता हूँ। सर थैंक यू। तभी मेरे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, मतलब जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही, तो अच्छा हुआ मेरा डाउट क्लियर हो गया। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जी। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आई रियली अप्रिशिएट। इस टाइप का जो स्मार्ट क्वेश्चन होता है ये वाकई कम ही लोग पूछ पाते हैं, कि आपने इतना ध्यान से आपने सुना है इसका मतलब, और इतने ध्यान से उसको क्वेश्चन में से आपने उसमें से क्वेश्चन निकाला है। सर आई एम लर्निंग डे एंड नाइट। आई एम लर्निंग डे एंड नाइट। पिवट टेबल पर एक ऐप का मैं वेबिनार अटेंड करना चाहूंगी। आजकल मैं पिवट टेबल पर ही स्टडी कर रही थी सारा। नहीं मेरा जो है ना परसों है जी, वो 4 बजे से 6 बजे तक होगा, 4 से 6:15 बजे तक परसों होगा जी। ठीक है सर, मैं व्हाट्सएप पर आपसे कनेक्ट कर लूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दीपक जी, दो तीन फाइलें एक्सेल की मर्ज करके लेटेस्ट डेटा कैसे जनरेट किया जाएगा, ये पूछना है। क्या जी? 2-3 एक्सेल की फाइल है हमारे पास, एक ही से रिलेटेड है, और इसमें से ये नहीं पता लग रहा है कि किसमें क्या डेटा है, किसमें क्या डेटा है। उसको फिल्टर आउट करके अपडेट डेटा हम कैसे निकाल सकते हैं? मतलब उनको इकट्ठा करना है क्या, सबको कंसोल करना है या क्या करना है? इकट्ठा करके उसका कंक्लूजन लेना चाहते हैं। हाँ सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ये देखिए मैं आपको, देखो अभी आप कहोगे जी इसके लिए वो, तो आप इसके अंदर मैं आपको जो है ना, ये इस पे आप जाओगे और इसके अंदर जाकर के जो ये चैनल पे मैंने कर रखा है कंसोल मल्टीपल फाइल्स, लाइक इसके अंदर मेरा जो चैनल है आपका, तो इसमें आप जाओगे तो एक बहुत बढ़िया एक यूटिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूटिलिटी वो भी। और आप जो है ना 100 फाइलें हो, 1000 फाइलें हो, उन सब फाइलों को आप जो है एक साथ सोल्व कर सकते हो जी।
1 मिनट के अंदर कंसोल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को कि कैसे उसको फाइल को हम इकट्ठा कर सकते हैं जी। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या जिसमें मतलब आप रेगुलर अपडेट देते हाँ होंगे? बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप है जी, मैं यही कह रहा हूँ। तो आप अगर मेरे को एक बार टेक्स्ट कर देंगे ना, एक बार मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं उस ग्रुप के अंदर आपको डाल लूंगा। चाहे 100 लोग हों 200 हों, तो उसके अंदर मैं आपके जो अपडेट्स होंगे, जो भी मेरे वेबिनार के हैं, नए कोई टिप्स में डालता हूँ, वो सारी आपको मिलती रहेंगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। नंबर नोट कर लीजिए 9810315945 सर। यस सर, वन मोर क्वेरी। आयुष बंसल जी, आस्क योर क्वेश्चन। आयुष बंसल जी। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन मेरे को। थैंक यू। देयर इज नो क्वेरी। हाँ, देयर इज अ क्वेरी सर। सर जैसे सपोज एक्सेल में 49 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, इज देयर इज अ वे टू कन्वर्ट दैट इनटू टेक्स्ट? दिस इज 17 बिल्कुल सर। अरे सर, आप तो ये सारे क्वेश्चन मेरे से, अगर ये क्वेश्चन उस टाइम पूछते हैं ना जब फिजिकली, मैं सबको चॉकलेट देता हूँ। जो लोग मेरे को जानते होंगे, तो मैं राजेश जी से कहूंगा कि आपको ये चॉकलेट भिजवाएं। इतने अच्छे क्वेश्चन, उसने मैम ने भी इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि तीनों की तीनों एक साथ में फ्लैश फिल कैसे कर सकता हूँ। तो ये राजेश जी की ड्यूटी है कि आप उनको जो है ना सर मेरी चॉकलेट अलग से भिजवा देना। क्या जी? सर मेरी चॉकलेट अलग से भिजवा देना। अरे सर, वो तो आपको तो चॉकलेट क्या, आपको तो पूरे चॉकलेट के रैपर्स जितने भी होंगे वो सारे आपको मिलेंगे सर। सर थैंक यू। चॉकलेट के सारे रैपर जो है ना वो ये मिलेंगे। ये देखिए सर, आप ये जो है ना, जो आप ये पूछ रहे हैं सर, उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो आप जो कह रहे हैं ना सर, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फिगर इन वर्ड रुपीज, ये मैक्रो के थ्रू एक है। मैक्रो है सर, मैं दे दूंगा, आपकी आराम से चलेगी। अब जैसे बिलिंग का है, अब ये देखिए, ये जो है इसके अंदर मैंने डाल रखा है। आप जो भी अमाउंट डालोगे, सपोज करो आपने यहाँ पे अमाउंट डाली कि हमने कुछ भी अमाउंट डाल दी और आपने ये फॉर्मूला लगाया और इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए, ये आपके आ गया ₹2,34,000, ये आ गया। अगर इसको मैंने कर दिया 11 रुपए, ये आ गया ₹11.0 ओनली। तो ये छोटा सा एक मैक्रो टाइप का एक फॉर्मूला बना दिया, और उस फॉर्मूले का नाम जैसे हम करते हैं ना, इक्वल टू ये स्पेल नंबर डाल दिया। इस स्पेल नंबर मेरे को करना है। तो ये स्पेल नंबर कैसे होगा सर? ये मैं आपको एक मैक्रो है सर, ये मैक्रो मैं आपको ये फाइल दे दूंगा। इसका जो कोडिंग देखोगे ना सर, ये कोडिंग है, इसके अंदर ये देखिए मैक्रो है। ये मैक्रो आपको सीखना नहीं है, बस इसको कॉपी करके मैक्रो को Ctrl+C करके अपनी फाइल में डालना है, और आपकी फाइल में ये परमानेंट चल जाएगा सर। नहीं तो एक फाइल में डालूंगा तो मैं कभी भी एक्सेल पे काम करूंगा, सब में काम चलेगा? ये अगर आप एक फाइल में डालोगे जैसे, और वो फाइल खुली होगी तो सब में करेगा। नहीं तो मैं एक आपको तरीका और भी बता दूंगा। ये जो है कि आप इस फाइल को एक ऐसी जगह पे डाल दोगे कि आपकी सब फाइलों में काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, तो यू कनेक्ट प्लीज मी। कोई उसमें ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगना है सर, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा शुरू में हो सकता है 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट लग जाएगी आपकी, लेकिन फिर उसके बाद ये परमानेंट हो जाएगा सर। ठीक है आयुष जी। मैक्रो कैसे मिलेगी? क्या जी? ये मैक्रो सर, मैं आपको ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप पे करेंगे या मैं राजेश जी को भेज दूंगा, राजेश जी आपको भेज देंगे। आई प्रॉमिस यू कि ये मैक्रो मैं आपको दे दूंगा। एक मेरा जीएसटी की रिकंसिलिएशन की भी यूटिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 2A और 3B को रिकंसाइल करने के लिए। वो आप मेरे वेबसाइट उस पे जाओगे, वहां पे उसका लिंक दे रखा है मैंने, जीएसटी रिक्को का, तो वहां से आप डाउनलोड ले सकते हैं, जीएसटी रिक्को वाला जो है ना। और ये देखिए जीएसटीआर रिकंसिलिएशन, तो यहाँ पे जब जाओगे आप, इसके अंदर देखिए ये नीचे लिंक बना हुआ है, ये देखिए लिंक बना हुआ है, डाउनलोड द ट्रायल वर्जन। ये देखिए वर्जन है, ये देखिए डाउनलोड द ट्रायल वर्जन। इसको अगर आप क्लिक करोगे, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी, रिकंसाइल जीएसटीआर 2A 3B इन 10 सेकंड्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गोयनका जी, पीके गोयनका जी, प्लीज आस्क योर क्वेरी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे दो डिफरेंट डेट्स के बीच में अगर डेज निकालने हो ना, उसका क्या फॉर्मूला है? अरे सर ये तो बहुत इजी है। आप सर कहाँ रह गए थे? इसमें दिक्कत आ जाती है वो फॉर्मूला में, मतलब है ना, ये देखो जो है। अरे सर देखो, आप ये देखो, ये मैंने डाल दिया आज, हमने डाल दिया 10 अप्रैल, और यहाँ पे डाल दिया 20, और आज है मेरी 15 अप्रैल 20। ठीक है जी। अब ये 2 डेट मैंने डाल दी सर, ठीक है। तो एक्सेल में क्या होता है सर, ये जो डेट होती है ये एज ए नंबर लेता है। अब अगर इसका फॉर्मेट मैं दोनों को सिलेक्ट करके, और अगर मैं इसको फॉर्मेट को जनरल कर दूंगा, तो देखिए नंबर नजर आएगा। मतलब एक्सेल में हर एक डेट एक नंबर होती है सर।
बैक एंड पे। तो यहाँ पे अब इसको आप क्या करोगे, नॉर्मल जैसे प्लस माइनस करते हो, 15 अप्रैल माइनस 10 अप्रैल, ये देखिए 5 दिन, या आपके 5 दिन आ गए सर। एक्सेल में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप तो ये नॉर्मल डेट देख रहे हो। अगर किसी को ये करना हो, जैसे हम करते हैं ना अपने कस्टमर केयर पे फोन, वो कहते हैं जी हम जो है ना 5 वर्किंग डे में आंसर देंगे आपका। वर्किंग डे का मतलब होता है सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं करना, या हमने होली दिवाली नहीं लेनी। तो एक्सेल में ये भी फंक्शनलिटी है कि हम चाहें तो 2 डेट के बीच में, कि 15 अगस्त से लेके या 26 जनवरी से 15 अगस्त के बीच में सैटरडे संडे हटा के, बीच में रामनवमी हटा दी और हमने बीच में रक्षाबंधन हटा दिया, तो कितने मेरे दिन बचेंगे वो भी निकाल सकता हूँ मैं, 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ। इसमें ये जो डेट्स आपने लिखी है ये इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा, अरे सर ऐसा नहीं है। ये देखो आपका ऐसे फॉर्मेट डाल दो। अरे सर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो फॉर्मेट डाल दो सर। ये देखो, और फिर वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया और ये देखो आ गया सर। ओके ओके ठीक है। अखिलेश जी आस्क योर क्वेश्चन। अखिलेश जी सर मेरी क्वेरी है। हाँ बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं? मैं नितिन बोल रहा हूँ सर। मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं 1 2 मैं लिख रहा हूँ तो सीरियल नंबर आ जाता है, क्या डेट में भी सीरियल नंबर आता है ऐसे? 10th 11th 12th तो ऑटोमेटिक उठा ले, वो नहीं उठा रहा सर। नहीं नहीं सर, देखो ऐसे उठाएगा, मैं बताता हूँ। आप कह रहे हो कि 11 आपने 4 और 2020 डाल दिया। अब आप ये चाह रहे हो कि इसको नीचे खींचो तो 12 आ जाए ना? हाँ जी हाँ जी। तो ये देखिए मैं आपको खींच रहा हूँ, ये देखिए मेरा जो है ये 12 13 14 आ गया, ठीक है। ये 7 में आ जाता है 2007 में? अरे सर आ जाएगा, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है मैं उसकी बता रहा हूँ, आप देखो प्रॉब्लम क्या है। अब आप देखिए मेरा जो है ना ये डेट का, ये नीचे विंडो का देखिए, डेट का फॉर्मेट देखिए क्या है, क्या फॉर्मेट है मेरा सर? स्क्रीन में आ नहीं रहा आपकी। क्या? आपकी स्क्रीन में जीएसटी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 06 QQFC करके। कॉर्नर पे जहाँ पे आप टाइम देखते हो ना जी, टाइम सर उसको पे आपका डेट का फॉर्मेट देखिए, क्या डेट का फॉर्मेट क्या है वहाँ पे देखिए एक बार। हाँ जी, आपका डैश वाला है 15 अप्रैल 15/04/2020। मेरा स्लैश वाला है, ये कैसे ठीक होगा? अरे सर स्लैश की बात नहीं है, पहले मंथ है कि डेट है आपके में? पहले में मंथ है सर। हाँ तो यही गलती है ना सर, मैं ये कह रहा हूँ। अगर उसको डेट और मंथ का कर लोगे तो आप भी खींचोगे तो आपकी डेट आ जाएगी सर। ठीक है सर। एक तो ये बता दो ठीक कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको, ठीक कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। आप इसमें जाओगे और यहाँ पे जाकर के कंट्रोल पैनल में चले जाओ, अपने कंट्रोल पैनल। ठीक है सर। एक्सेल से बाहर, और वहां पे रीजनल सेटिंग है, रीजनल सेटिंग, और वहां पे जाके 1 सेकंड लगेगा आपको, 1 सेकंड जाके 2 मिनट आधा रीजनल सेटिंग। क्या जी? कंट्रोल पैनल में जाने के बाद सर रीजनल सेटिंग। हाँ कंट्रोल पैनल में जाके रीजनल सेटिंग होगी और वहां पे जाकर के आप डेट का एक होगा, तो डेट का फॉर्मेट MDY की जगह DMY कर दो। ठीक है सर। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और है, हम जैसे एक काम करना सर, अगर आपको दिक्कत आए ना, आप मेरे से बाद में ये क्लास खत्म होने के बाद सर कल जो है ना आप मेरे से कनेक्ट करना, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन मेरा वो सबके काम आएगा सर, हमारे जीएसटी में बहुत काम आता है वो। सेल के अंदर सर वो क्या नाम है, कैसे लगेगा फिल्टर? किसी भी सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए मुझे हर सेल में चाहिए यस और नो, तो उसमें एक ऑप्शन है जिसमें से मैं सिर्फ यस और नो ही सेलेक्ट कर पाऊँ, किसी भी सेल के अंदर वो कैसे लगेगा सर? तो सर वो तो फिल्टर है ही ना। अब जैसे आपका ये डेटा है सर, ये देखिए। नहीं सर वो नहीं कह रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने आज की डेट लिखी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जैन की मंथ, रिटर्न फाइल हुई या नहीं हुई, उसके सामने मुझे यस या नो लिखना है, तो वो मुझे लिखना ना पड़े, सेलेक्ट ही करना पड़े, हर सेल के अंदर वो स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन आ जाए। अच्छा ये देखिए, इसमें जाइए आप डेटा में जाइए, और डेटा के अंदर जो है ना आप जब जाएंगे सर, यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक चीज आती है नजर, और यहाँ पे नजर आती है डेटा वैलिडेशन। नजर आ रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। इसको जब क्लिक करेंगे तो सर यहाँ पे आपको नजर आएगी लिस्ट। इसके अंदर आप जाकर के इसमें बोल दीजिए यस, और कोमा डाल करके आप बोल दीजिए नो, या इसमें, या इसके आप कर दिया एक इसमें नोट एप्लीकेबल, कुछ भी डाल दीजिए आप, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, या आप अपनी उसका रेंज का नाम दे दीजिए। इसको ओके कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा सर, एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा आपका। हाँ जी। और इस ड्रॉप डाउन को आप जाओगे, इसके अंदर से आप जाकर के देखोगे, देखो यस नो नोट एप्लीकेबल। तो ये तो एक ही पे आ रहा है, और बाकियों को इस पे सब पूरी शीट पे लगाना हो तो कैसे लगेगा सर? सर इसको खींच लो ना सर, इसको खींच लो, अब ये लग गया सब में। अब इसको जाकर के, और इसमें जाकर के नो कर दो, इसमें या डिलीट कर दो, इसको ब्लैंक को कर लो, खींच लो आप। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। अखिलेश जी आस्क योर क्वेश्चन। अखिलेश जी नहीं, अनिल बजाज जी, पारस जी आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन था
फिल्टर डेटा पे मैं कैसे पेस्ट कर सकता हूँ कोई चीज? सर फिल्टर डेटा के ऊपर नहीं कर पाओगे, लेकिन फिल्टर वाला डेटा आप दूसरी जगह पे कर पाओगे। फिल्टर उसमें जो है ना फंक्शनलिटी जो होती है, बाहर वाला डेटा अगर फिल्टर पे करोगे सर वो नहीं लेगा सर। हेलो, हाँ जी सर जतिन बोल रहा हूँ। जी जी सर एक गूगल ड्राइव पे जो एक्सेल का होता है जी, तो जतिन जी बोलो। हाँ सर, कोई ऐसी सेमिनार वगैरह रख सकते हैं जो गूगल ड्राइव पे एक्सेल वगैरह सिखा दे? गूगल ड्राइव पे सिखा दे मतलब मैं समझा नहीं। सर गूगल ड्राइव पे भी हम एक्सेल की शीटें वगैरह शेयर कर लेते हैं ना, कुछ फॉर्मूले लगा लेते हैं, कल लोग कर लेते हैं। हाँ जी, तो वो चीजें कह रहा हूँ, वो सर अगर सीखना हो तो कैसे, कोई है ऑप्शन? सर देखो, अगर कुछ आपका एक आध कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ सर, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा सीखना है तो आजकल देखो, जैसे मेरी एक्सेल के अंदर मास्टरी है, गूगल सीट भी मैं करता हूँ, लेकिन ठीक है ज्यादा काम एक्सेल पे करता हूँ। राज्य सरकार को वो है, तो आप उसके लिए सर यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करो सर, बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। राकेश सर, एक मेहंदी क्वेश्चन गुप्ता जी, हाँ कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, हाँ कौन सा बोल रहे हैं? सर वर्ड में जैसे हम पैराग्राफ को मार्जिन सेट करने के लिए जस्टिफाई का ऑप्शन यूज करते हैं। इसके लिए सर पैराग्राफ अगर मेरा होता है तो उसमें जो दोनों साइड के एंगल्स को इक्वल करने के लिए जस्टिफाई का ऑप्शन यूज करते हैं। जी जी, एक्सेल में भी सर ऐसा फंक्शन होता है। हाँ जी होता है। लेकिन सर अगर मेरे दो सेल मर्ज होते हैं तो काम करता है वो? दो सेल मर्ज होते हैं? जी जी। लाइक मैं भैया एग्जांपल कोई दे करके, जैसे सर आप एक एक्सेल की शीट पे ए और बी सेल को मर्ज कर लीजिए। हाँ हाँ। और उसमें सर कोई भी एक पैरा टाइप करते हैं आप, तो साइड में जो एंगल्स होते हैं राइट और लेफ्ट वो इक्वल होने चाहिए हमारे। लेकिन अगर मैं जस्टिफाई का ऑप्शन यूज करते हैं इसमें तो वो काम नहीं करता है। नहीं तो सर उसको आप जो है ना, पहले आप उसको जो है ना जस्टिफाई हटा, उसको जो मर्ज है वो मर्ज हटा दो एक बार, और फिर उसके बाद आप उसको करोगे तो आपका हो जाएगा सर। सर वो सिंगल सेल में हो जाता है। नॉर्मली हमारी काफी सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो मल्टीपल सेल को मर्ज करने के बाद बनाते हैं। नहीं नहीं सर, मल्टीपल में भी हो जाएगा सर, वो मैं आपको जो है ना करके दिखा देता हूँ। अब आप जी एक बात सर, जैसे आप इसके अंदर हो, ये डाटा देखिए आपके पास, ये डाटा है जैसे, राइट। अब आपने इसमें डाला वी आर इन ट्रेनिंग, राइट, और आपने फिर से डाल दिया वी आर इन ट्रेनिंग, और ऐसे करके और आपने ये ऐसे डाल दिया सर। और इसके अंदर बीच में आपके बॉस ने बोल दिया कि ट्रेनिंग के साथ जो है ये इसमें कहीं पे डाल दिया विद एक्सपर्ट, यहाँ पे आपने डाल दिया कि जो है ये जो है ट्रेनिंग इज गोइंग, या इसमें ये आपने बोल दिया कि ये डिलीट कर दो, उसने बॉस ने ऐसे बोल दिया। अब आपने इस सबको मर्ज करना है आपने, कि आपकी इसकी प्रिंटिंग अगर आप करोगे, इसकी प्रिंटिंग करने में क्या होगा, आपका जो प्रिंटिंग आएगी वो ठीक नहीं आएगी ना जी। बिल्कुल। तो आप इसको चाह रहे हो कि ये ठीक से आपका ये मर्ज हो जाए, राइट। आपका जो ये फॉर्मेट आए, ये उसके अंदर आए जैसे कि ये 3 सेल है, जैसे सपोज करो ये बाहर निकला हुआ है, या आप चाहते हो कि ये बाहर जो निकला हुआ है आपका जो डाटा पड़ा हुआ है वो ऊपर यहाँ तक पड़ा हुआ है, सपोज यहाँ तक। अब आपको प्रिंट लेना है तो आपको प्रिंट तो ये वाले ले हुए, ये वाला बाहर निकल जाएगा ना आपका जी, राइट। आपके 2 ही कॉलम है, सपोज करो आपके 2 ही कॉलम है और आपको प्रिंट लेना है, बस यहाँ तक का प्रिंट लेना है। आप चाहते हो कि इतना प्रिंट लूं तो मेरा नीचे वाला भी ठीक से आ जाए। यही है ना जी आपका क्वेश्चन? नहीं सर, जैसे अभी वी अगर आप फर्स्ट वाले लाइन में देखेंगे, वी और जो ट्रेनिंग है दोनों के एंगल इक्वल है, हाँ राइट। और जो इसमें थर्ड लाइन में जब जाएंगे, वी आर से लेके ट्रेनिंग तक बिल्कुल लास्ट तक गया हुआ है। हाँ जी। तो अगर आप इन दोनों सेल को मर्ज करेंगे तो इनके एंगल अलग अलग हो जाएंगे ना। अरे सर मैं करके दिखा रहा हूँ ना, नहीं होगा। आप देखिए, आपको मैं ये सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे, आप चाह रहे हो कि 2 ही सेल में लेके आना है इनको, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया ऐसे, राइट। और सिलेक्ट करने के बाद आप सर क्या बोलिए, इसमें जाइए, ये देखिए होम के अंदर गए और आपने जाकर के इसके अंदर गए, ये फिल के अंदर, और फिल में जाकर के इसको बोल दीजिए जस्टिफाई। तो जैसे जस्टिफाई करेंगे, ये देखिए अपने आप से घूम करके, और ये पूरा का पूरा इसमें नीचे चला गया, ये उसी कॉलम्स के अंदर आ गया ये ऑटोमेटिकली। जी जी। और अगर आपने जाकर के इसको 5 कॉलम में डालना है, ऐसे देखिए इसको, तो ये फिर से जाइए इसमें और फिल पे जाकर के आप बोल दीजिए जस्टिफाई। तो ये देखिए ये लाइन आपकी ऐसे बन गई, वी आर डी ट्रेनिंग, जैसे वर्ड के अंदर होता है ना जी, वैसे आपको। ठीक है गौरव जी, इट्स ओके। थैंक यू। ओम दुबे जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओम दुबे जी
अनिल बजाज जी, शिवम तिवारी जी, सुधीर जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अग्रवाल जी, अब कोई, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आप पूछिए मैडम, पूछिए। एक लिस्ट में जैसे बहुत सारे नेम्स है और एक नेम के अलग अलग स्पेलिंग्स आए हुए हैं, तो उनको ठीक कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सर, आपका जैसे, विजय है, हाँ, यहाँ पे राज है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे श्याम है। विजय की स्पेलिंग जैसे नेक्स्ट लाइन में गलत है, VIJY लिखा है, या फिर मोहन को MOHN लिखा है, तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? नहीं तो वो कैसे पता लगे कि वो गलत है या ठीक है? हो सकता है उसका नाम ही VIJY हो, फिर कैसे उसको एक्सेल को कैसे पता लगे कि वो गलत है? सर मतलब वो मैनुअली ही करना पड़ेगा, चेक करना? अरे मैम, आप मेरे को बताओ तो सही। आप ठीक है, आपने बोला कि विजय है जैसे ये, ठीक है, अब किसी का नाम ही विजी है, अब आप तो ये तो आप कह रहे हो कि ये गलत है, तो एक्सेल को बताने के लिए या तो मेरे को एक टेबल दो। आपने एक टेबल दे दिया, एक अलग से मास्टर दे दिया कि आपने एक विजय दे दिया, एक आपने मोहन दे दिया, एक आपने जो है इसके अंदर राज दे दिया। अब आप बोल रहे हो कि इसके अंदर से ये नाम ढूंढे, अगर उसको मिल जाए तब तो वो ठीक है, अदरवाइज उसको नहीं मिले जो भी, तो वो इसके अंदर दिखा दे कि ये एरर है, या उसके आगे आप लिख दो कि विजय को जो है ये क्या समझे कि आपने जहां पर भी इसने विजय लिखा है उसको विजय समझे। तो इसमें अगर हमारे पास एक है टेबल, तो उसके थ्रू कैसे करना है? वो उसके लिए कौन सा? उसके थ्रू तो फिर आप लुकअप लगा लीजिए, वी लुकअप लगा लीजिए, इंडेक्स मैच लगा लीजिए, जो मर्जी लगा लीजिए। आपके पास अगर टेबल है फिर तो आपका एक मिनट नहीं, आधा मिनट नहीं लगेगा मैम ये काम करने में। ठीक है, आप मेरे को डाटा दो, मैं आपको करके मैं आपको दिखा दूंगा। अभिषेक राणा जी, सर आई हैव वन क्वेरी। जी आप पूछो। सर आई हैव वन क्वेरी। सर समटाइम्स होता है डेटा वैलिडेशन में हम किसी शीट से वीलुकअप लगाते हैं, सो हम एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि उसके बाद हम उस रेंज में जाके कुछ नीचे नंबर ऑफ लाइन आइटम्स ऐड करते चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ बट प्रीवियसली जहां हमने फॉर्मूला लगा रखा है वहां उस रेंज में वो सेलेक्टेड आइटम नहीं आती है, तो डेटा पूरा प्रॉपर नहीं आ पाता, फिर वो डेटा इग्नोर हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तरीका है सर कि जो अगर हम जितनी भी लाइन आइटम उसमें ऐड करते चले जाएं तो हमारे वीलुकअप की वैलिडेशन है वो सारी चीज कवर होती चली जाए। बिल्कुल 100% है जी, 100% है। आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा जी, आई एम वेरी हैप्पी। लाइक जो है ना, हम इस टाइप से हम सोचते हैं। देखिए जी, आपने ये नेम डाल दिया जी यहाँ पे, राइट, ये नेम डाल दिया आपने, और ये आपने नाम डाल रखे हैं यहाँ पे कि अलग अलग नाम आपने डाल रखे हैं, राइट। अब आपने क्या किया, इसके डेटा वैलिडेशन लगाई यहाँ पे, और आपने बोला जी इसके अंदर जाकर के डेटा पे गए, और यहाँ पे जाकर के आपने बोला जी डेटा वैलिडेशन, और इसमें जाकर के आपने दिया नाम लिस्ट में जाकर के आपने सोर्स के अंदर ये नाम दे दिया जी, और इसके बाद जाकर के इसको ओके बोल दिया। मैं यहाँ पे जाकर के कलर कर देता हूँ। अब आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं बिल्कुल समझ गया सर, बहुत ही ये कॉमन प्रॉब्लम है कि आपने बोला ये जो है ना मैं उठा करके ये यहाँ पे ले गया, जैसे इसमें आपने क्या किया, इसके अंदर विजय राज मोहन ये आ रखा है। अब आप कह रहे हो जी आपने यहाँ पे जाकर के अमिताभ डाल दिया, ठीक है जी, यहाँ पे गए आप और इसके नीचे और राजेश डाल दिया यहाँ पे। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब गए तो आपको क्या है, विजय राज मोहन श्याम या अमिताभ और राजेश जी तो आए नहीं। एम आई राइट सर? पहले तो ये बताओ सर। यस सर, हाँ जी सर। यही प्रॉब्लम है। इसके साथ सर एक और है, पर ये भी आप करेक्ट कह रहे हैं, इसी में एक और एड ऑन बाद में करता हूँ। बताइए, वो भी बताइए सर। सर ये तो एक डेटा वैलिडेशन का हो गया। जब मैं एक शीट से दूसरी शीट पे भी वीलुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ तो कई बार टोटल के फॉर्मूले में भी ये इशू आता है कि हम उसमें क्या कहते हैं ना, बाद में एंट्रीज को नीचे ऐड करते चले जाते हैं। वो तो बात एक ही होगी ना, प्रॉब्लम तो वही है ना सर, ये तो प्रॉब्लम यही है। चलो अब दुबे साहब पूछिए, आस्क योर क्वेश्चन। दुबे जी। हाँ जी। ये सर, हेलो। हाँ जी, इसका मैं जवाब दे रहा था सर। हेलो सर, अभी अंडरस्टैंड करनी है, कैसे करेंगे? आप दुबे जी पूछो ना, आस्क योर क्वेश्चन। राजेश जी एक मिनट सर, कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। अच्छा चलो ठीक, म्यूट करो। वो हेलो अभिषेक राणा जी। हो गया सर, प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके, करो आपने। हेलो हाँ जी विजय सर। हेलो विजय सर, इस क्वेरी को पूरा बता दीजिए प्लीज।
हाँ हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन वो राजेश जी कह रहे हैं कि उनके क्वेश्चन एक बार पहले सुन लीजिए, तो मैं इसका जवाब देने वाला हूँ सर आपको। हाँ जी ठीक है सर। तो इसके लिए आपने क्या करना है सर, एक फीचर होता है इसमें, ये एक्सेल के अंदर देखिए, इंसर्ट जो है, जैसे आप पिवट टेबल यूज करते हैं ना सर, इसी के बगल में एक फीचर होता है टेबल। टेबल ठीक है, आपने क्या करना है जी, इसको जैसे मैं हटा देता हूँ ये डाटा को, आपने इस डाटा पे जाना है कहीं भी और इसको कंट्रोल टी कर देना है, टी, कंट्रोल टी, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये टेबल में, अब ये एक्सेल जो है ना समझ जाएगा, अब एक्सेल समझदार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब यहाँ पे आप जाओगे इसके अंदर और इसमें जाकर के, अब की बार आपने इसमें नाम डाल दिया नहीं, और आपने डाल दिया इसमें अमिताभ, अब की बार आपने इसके अंदर नाम डाल दिया राजेश। अब आप जब यहाँ पे जाओगे सर, तो यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, अमिताभ भी आएगा और राजेश भी आएगा। थैंक यू सो मच सर। अंशु जी आपका कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ ललित मोहन पांडे जी, पांडे जी। हाँ जी विजय सर। हाँ बोलो भैया बोलो। हाँ जी सर, मैं एक फ्रेशर आर्टिकल हूँ, तो सर इसका कोई ऐसा प्रॉपर कोर्स है जिससे एक फ्लो में सीख सके, कंफ्यूज ना हो, मिक्स ना हो? सर प्रॉपर कोर्स तो देखो जी, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ बनाने के लिए, लेकिन चक्कर ये है अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा टाइम है आप लोगों के पास, लेकिन वैसे जो है ना फिर लोग अपने अपने में बिजी हो जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि एक दिन में मैं कोई ऐसा कुछ घोट के पिला दूं उनको कि चाबी भर दूं और आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ सर, इसलिए कह रहा हूँ सर, कोई प्रॉपर कोर्स हो सर, मतलब। तो अभी ये जो है ना जूम का बड़ा अच्छा चला है, तो मैं अब इसका एक जो है ना थोड़ा सा मैं विचार कर रहा हूँ कि कोई वीकेंड कोर्स में जो है ना, जैसे ताकि बाद में भी चले, तो लॉन्च करूँ मैं कि हफ्ते में 2 या 3 क्लासें लें उसकी, 2 घंटे की या 1.5 घंटे की, ताकि लोगों को कोई भी जो है प्रॉब्लम भी ना हो और ये धीरे धीरे एक्सेल वो सीख जाए। तो अभी तो मैं एक एक टॉपिक के ऊपर ले रहा हूँ, जैसे आप अगर भाई पिवट टेबल है, अभी मैंने वी लुकअप के ऊपर एक लिया था 2 घंटे का प्रोग्राम कि वी लुकअप के अंदर मास्टरी कैसे करनी है, केवल वी लुकअप के ऊपर 2 घंटे का प्रोग्राम लिया था अभी। तो इसी टाइप से आगे मैं प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम मेरा आएगा अगले हफ्ते में, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट कैसे बनाए, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस डालते ही मेरी बैलेंस शीट P&L ऑटोमेटिक कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर एक मैं एक्सेल का प्रोग्राम करूंगा, 2 सीरीज में 2 प्रोग्राम होंगे 2-2 घंटे के। ललित मोहन जी, ललित मोहन जी, ललित मोहन जी, ललित मोहन जी, सुधीर जी, सुधीर जी, सुधीर जी। हेलो जी। हेलो जी जी सर। सर ये एक डेट है, डेट जैसे पॉइंट में जो डेट लिखते हैं उसको दूसरे वाले फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखिए आपका क्वेश्चन ये 12.4 और आपका 2020 है। आपने बोला कि एक आपका है 1.5 2019 है, ऐसे आपका डेटा पड़ा हुआ है, राइट? करेक्ट। तो इसको हमने कैसे करना है? ये सर इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, और आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको देखिए 1-1 सेकंड में जवाब मिलेगा, जिसके लिए आप पूरा पूरा घंटा लगाओगे, और मैं उन क्वेश्चंस को आपको 1-1 सेकंड में आपके ये खुद ही कर पाओगे। आपने जैसे ये क्वेश्चन है, आपने क्या करना है सर, इसको सेलेक्ट करना है या इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, जहां पे आपने करना है कंट्रोल H कीजिए, कंट्रोल H, कंट्रोल फाइंड और रिप्लेस, और यहाँ पे जाकर के क्या करिए, फाइंड में तो लिख दीजिए डॉट, और रिप्लेस विद में कर दीजिए स्लैश, और इसके बाद कर दीजिए रिप्लेस ऑल। ये आप जाओगे, यहाँ पे आप गए, कंट्रोल H किया आपने, स्लैश पे आपने ये किया, और सीट आपने फॉर्मूलाज बाय रोज, तो यहाँ पे आपका और इसमें आपने करना है रिप्लेस ऑल। ये देखिए रिप्लेस ऑल करते के साथ इसने क्या किया, सारे के सारे रिप्लेसमेंट करके वो डेट ठीक हो गई। बस इतना सा काम था सर। कितनी देर लगेगी? ओके सर, ओके, थैंक यू। आप घड़ी में टाइम देख लेना सर, 10 सेकंड भी नहीं लगेगी आपकी, चाहे 1000 डेट हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ललित जी आस्क योर क्वेश्चन। ललित जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम कई बार शीट बनाते हैं जी, उसमें क्या पर्टिकुलर रो को या कॉलम को उसमें कर सकते हैं कि स्टाफ उसको चेंज ना करे? हाँ तो वो तो है ना, इसमें प्रोटेक्शन होती है जी, बहुत बढ़िया सी एक फीचर है इसमें प्रोटेक्शन का, कि आप उसको सीट को प्रोटेक्ट करोगे। अब जब मैंने यूटिलिटी दी है आपको, अब जो मैंने अभी यूटिलिटी की बात कर रहा था, मैंने आपको जो दी है अभी, आपको जो ये भेजेंगे जैसे, उसके अंदर आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, सेम चीज उसमें ये हो रखी है। ये देखिए, ये आप इसमें गए
अब इसके अंदर आपको जो सेल मैंने उसमें लॉक लगा रखा है, इसके अंदर आप जो ये व्हाइट सेल है बस इसको आप चेंज कर सकते हो। आप इसको चेंज करना चाहोगे ये करने ही नहीं देगा, आप इसको चेंज करना चाहोगे करने ही नहीं देगा। हाँ इसमें जाओगे आप इसमें नंबर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे इसको चेंज कर सकते हो आप। वो करना कैसे है, मतलब लगाना कैसे है लॉक? ये लॉक जो है ना जी इसके अंदर ये होता है एक फॉर्मेट होता है, जैसे आपको सीट का लॉक करते हैं, जैसे इसमें गए और आपने इसमें जा करके रिव्यू में गए, रिव्यू में तो रिव्यू में जाकर के इसमें होता है प्रोटेक्ट सीट। तो जब हम प्रोटेक्ट सीट करते हैं तो बिना पासवर्ड भी कर सकते हैं, पासवर्ड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया ए, फिर से इसने पासवर्ड पूछा ए, अब क्या होगा इसके अंदर ये सीट ये मेरी प्रोटेक्ट हो गई। अब अगर मैं इसमें कुछ नाम डालूंगा तो ये डालने नहीं देगा मेरे को। अगर मेरे को इसकी प्रोटेक्शन हटानी है तो मैं फिर से इसमें जाऊंगा और इसके बाद में इसमें ए डाल के पासवर्ड से अब अगर मैं डालूंगा तो ये डालने देगा मेरे को। ये जो है प्रोटेक्शन की कमांड होती है जी, जिसको आप करके यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है सर। सुधीर जी आस्क योर क्वेश्चन। सुधीर जी, सुधीर जी। नथिंग सर, ओनली ये प्रोटेक्शन, ये पूछा था आपने प्रोटेक्शन ऑफ शीट है सर, प्रोटेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सेल को कैसे करना है? उसी में है सर प्रोटेक्शन। और सेल को क्या करना है, जब आप यहाँ पे जाओगे सपोज आपकी सीट की जगह आप चाहते हो कि आपको जो है इन सेल्स को प्रोटेक्ट करना है, जैसे ये जो है ना आप इस पे होम पे गए और आपने जाकर के आपने बोला कि इन सेल्स को छोड़ करके बाकी पूरी सीट को मैंने प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, इन सेल पे जाओ और इस पे जाकर के राइट क्लिक किया और आपने बोला इसको फॉर्मेट सेल्स। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन में जाके इसकी प्रोटेक्शन हटा दो, जिसकी ये आपने प्रोटेक्शन आपने जिसको फ्री रखना है और जिसको आपने फ्री नहीं रखना उसको आपने ये टिक रहने लगा रहने दो। तो अब आप इसके बाद जाके इसको ओके बोल दीजिए। अब अगर आप सीट प्रोटेक्ट करोगे तो अभी देखो इस सेल के ऊपर अगर देखोगे और फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे ना आप यहाँ पे, यहाँ पे आप गए और इसमें जाकर के फॉर्मेट सेल्स कहाँ गया, नीचे नीचे सर, नीचे ये आ गया फॉर्मेट सेल्स। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये प्रोटेक्ट है, लेकिन ये कब काम करता है, जब मैं सीट को प्रोटेक्ट करता हूँ। मैं गया रिव्यू पे और इसमें मैंने बोला प्रोटेक्ट सीट और मैंने इसको ओके बोल दिया, तो अब ये वाला सेल मेरा नहीं लेगा, ये वाला नहीं हिल सकता, लेकिन इस सेल की मैंने प्रोटेक्शन हटा दी थी तो यहाँ पे मैं कुछ भी डालना चाहूंगा तो डालने देगा ये। समझ गया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो, थैंक यू। सुधीर जी लास्ट क्वेश्चन। सुधीर जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था। नाउ आई रिक्वेस्ट कोहली जी प्लीज प्रेजेंट ए वोट ऑफ थैंक्स सर। हेलो कोहली जी लास्ट क्वेश्चन may I ask प्लीज? विजय जी सर लास्ट वर्ड। हेलो विजय सर, एक पूछना था, दो कॉलम है उसके बेसिस पे हमें वीक लूप लगाना है, तो वो कौन से बेसिस पे लगाने का जरा एक्सप्लेन कर पाएंगे आप प्लीज? क्या कह रहे हैं सर, थोड़ी आवाज मेरे को क्लैरिटी नहीं थी सर आवाज में। सुनिए ना, हमें वी लुकअप लगाना है, इसलिए दो कॉलम का एक साथ कंडीशन बेसिस पे लगाना है, तो वो वी लुकअप कैसे लगाएंगे वो जरा एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। तो वो कौन से में वी लुकअप लगाना है, मतलब एक आपकी टेबल हो गई, जैसे एक आपका बेस डाटा हो गया, एक दूसरा डाटा हो गया, तो दूसरे डाटा में जाके आप वी लुकअप लगाएंगे तो उसके बेस पे आप उसका रेंज दोगे तो लग जाएगा सर। दोनों एक एग्जांपल के साथ बता पाएंगे आप? सर अभी तो अगर एग्जांपल लेंगे तो टाइम नहीं है भैया, टाइम लग जाएगा सर। वी लुकअप का जो है ना थोड़ा सा एक बार क्योंकि 1 मिनट आधा मिनट का होता तो मैं आपको भी ले लेता। आप मेरे से या तो अलग से प्राइवेटली आप मेरे को जो है ना वैसे मेरे से आप कनेक्ट कर लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे पास। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोहली साहब प्लीज प्रेजेंट ए वोट ऑफ थैंक्स। कोहली साहब थैंक यू विजय जी। आपने इतना आराम से ना विजर्ड से शुरू हुआ था, जादू विजर्ड जादूगर, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके सबको इतनी स्पष्ट तरीके से आपने सब चीज समझा दी। और जो एक्सेल है वो तो आप ओशन का ओशन है, जितना मर्जी गहराई में चलो उतने मोती मिलने हैं, लेकिन सबसे ये है जितनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्सेल आएगी, वैसे नहीं आ सकती। जो घुस के सबने एक्सेल सीखनी है, सबने तो पूरा इतना आई थिंक thousands of man hours you must have spent on Excel man years sorry and अच्छी तरह सर everyone's problems are clear, otherwise आप सर की चैम्प एक्सेल की साइट पे जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं,
ऑनलाइन ट्रेनिंग करें, आपको सारा का सारा एक्सेल का मजा आता जाएगा, बिकॉज सारे फिगर्स का काम है और एक्सेल इज अ ग्रेटेस्ट boon for all accountants or all figure work. Sir, thank you very much for everything. After our rollback deliberation physically, देखो online Zoom में देके we can have more and more such meetings as far as the time permits.